कम्युनिकेशन टुडे की 37वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज मेरठ में अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर तथा कम्युनिकेशन टुडे की डिप्टी एडिटर कवयित्री लेखिका डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध है कि वे सरस्वती वंदना के साथ और आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभिक परिचय देते हुए इसकी शुरुआत करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या श्वेत पद्मासना। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन कर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। Good evening to one and all. It's a pleasure that after so many hurdles of this pandemic, we are continuously maintaining this effort to come along with important, relevant topics across this virtual platform, being discussed by the dignitaries, the personalities who are expert in their topics. This platform is a sole dream of Professor Bhanavat. Professor Sanjeev Bhanavat, who has been head Center for Mass Communication, Rajasthan University for a long time. The efforts that he has put in to develop this journal, this media journal, bilingual media journal, because it's always being found that people are so conversant in English medium, but he's the one who has really put efforts to make this media journal in both the languages, Hindi and English. With his efforts only, we have successfully completed 25 years, celebrated Silver Jubilee, and because of the pandemic, we had to do it online only. Otherwise, the efforts that has been put by Professor Sanjeev Bhanavat as a sole person, all alone handling the entire journey, it would have been more grand if we could have done offline. He also came along with more than 10 issues, special issues on various topics related to media. This platform has given a strong facility wherein researchers, students, academicians, and media practitioners also had contributed with their intellectual ideas through their articles and their research papers. So we really understand that the efforts made by Professor Sanjeev Bhanavat for this media education fraternity is going to play a very important role in coming years also. We all are fortunate that the webinar series that has been started under the umbrella of Communication Today, Media Bilingual Journal is working as same for more than a year. We have completed more than a year, and probably more than 150 eminent speakers had got attached to this platform, and they have benefited a number of people with their ideas, their intellectual expertise. And once again, we are on this platform to discuss yet another relevant topic, and for that topic, the introduction, the background, and what this topic is all about. Now I would like to call upon Professor Sanjeev Bhanavat to introduce we all. Thank you so much, sir, and most welcome. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस जर्नल की उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी के साथ। और जैसा अभी जिक्र किया गया, इस वेबिनार श्रृंखला का यह 37वां कड़ी है, 37वीं श्रृंखला है। आज हमारे साथ इसी माध्यम से, इसी डिजिटल माध्यमों से
अकादमिक और व्यावसायिक दृष्टि से पिछले कई वर्षों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए 4 विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव लखनऊ से, श्याम माथुर जयपुर से, डॉक्टर राजीव कुमार पांडा भुवनेश्वर उड़ीसा से और सप्तर्षि मजूमदार कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ में हैं, जो इसके अलग अलग पक्षों पर प्रकाश डालेंगे। हमारा जो मुख्य विषय है भविष्य का मनोरंजन, OTT, ओवर द टॉप। शायद आज भी जब मैं विद्यार्थियों से संवाद करता हूं, बातचीत करता हूं, कई विद्यार्थी OTT से तो परिचित हैं, लेकिन ओवर द टॉप इसके बारे में वो पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। जो OTT की शुरुआत लगभग 12-13 वर्ष पूर्व 2008 में हमारे देश में हो गई थी रिलायंस के माध्यम से, लेकिन इसकी जो लोकप्रियता है वो संभवतः कोरोना कालखंड जो हमने देखा अभी उसमें ज्यादा हुई। जब सिनेमा घर बंद होने लगे, हम लोग घर की 4 दीवारी में सिमट गए, बाहर निकलते हुए एक अनजाने भय से आशंकित थे। उस समय शायद उस नए मनोरंजन की तलाश में जब टेलीविजन चैनलों ने शूटिंग स्थगित हो जाने के कारण वही पुरानी और बासी चीजें परोसनी शुरू की, ऐसे दौर में OTT प्लेटफॉर्म्स ने हमारे घरों में जिस तरह से अपना एक विस्तार किया है, इसने भविष्य में मनोरंजन के नए द्वार उद्घाटित कर दिए। एक ही जगह पर मनोरंजन के नानाविध साधन, और वो भी बिना किसी डिस्क या केबल के माध्यम से, अपने इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आप कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन सेट्स, कहीं बहुत इतना अधिक सुविधाजनक हो गया है, वहां तक आपका एक्सेस हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, OTT में जो कंटेंट का वैविध्य है, फिल्म्स है, टेलीविजन शोज हैं, वेब सीरीज हैं, इसने जिस तरह से हमारे पास एक विकल्प दे दिए हैं मनोरंजन के, इसने शायद न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को एक तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया है। और इसी के साथ बहुत सारे सामाजिक मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी खड़े होने लगी हैं। कल ही मैं एक स्थानीय अखबार में खबर पढ़ रहा था कि अमेरिका में बच्चे जिस तरह से एडिक्ट हो रहे हैं ऐप के माध्यम से, तो वो उस पर कानूनी शिकंजे की तैयारी कर रहे हैं। तो समाज वैज्ञानिकों ने, मनोशास्त्र, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस दिशा में सोचना शुरू किया है और राजनीतिक दृष्टि से भी इन्हें नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि किसी तरह की सेंसरशिप की औपचारिक व्यवस्था जिस तरह से फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ है, ये ठीक है कि जो हमारे केबल नियंत्रण अधिनियम है उसके तहत ये सारी चीजें संचालित हो रही हैं, लेकिन फिर भी उस तरह की सेंसरशिप की व्यवस्था अभी नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। टेलीविजन की बोझिल और नीरस होती मनोरंजन की दुनिया से निकल करके हम जिस दौर में प्रवेश कर गए हैं, भविष्य में न जाने कितने नए अध्याय खुलने वाले हैं। और जैसा अभी अनौपचारिक बातचीत इस आयोजन के शुरू होने के पहले सप्तर्षि से हो रही थी कि अब ये नए दौर का मीडिया है और जिस तरह से नई पीढ़ी, नए कलाकार इस दौर में आ रहे हैं, जब अब तो जो बड़े पर्दे के कलाकार हैं उनकी भी यहाँ पर एंट्री हो रही है, बड़ी बड़ी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रिलीज हो रही हैं, तो ये आने वाले दौर में किस तरह से हमारे पूरे जीवन पद्धति को, हमारे मनोरंजन के संस्कार को यस सर। तो जिस तरह से मनोरंजन की नई दुनिया हमारे सामने खुली है, इसने बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े किए हैं। तो आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव को। प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव पिछले कई वर्षों से इस डिजिटल क्रांति से जुड़े हुए उन मुद्दों पर नियमित रूप से लिख रहे हैं और देश के सभी प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में उनके आलेख संपादकीय पृष्ठों पर प्रकाशित होते रहे हैं। प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव का बहुआयामी अध्ययन, चिंतन मनन और अनुभव है। पिछले लगभग 22 वर्षों से वो पत्रकारिता शिक्षण से जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल तब से ही मेरा इनसे संवाद है। लखनऊ और देश के अनेक मंचों पर अकादमिक आयोजनों में इनसे मुलाकात होती रही है और वैचारिक विमर्श विभिन्न मुद्दों पर होता रहा है। लगभग 9 पुस्तकें अब तक आप लिख चुके हैं। पहली पुस्तक मानवाधिकार और मीडिया, इसको मानवाधिकार आयोग से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसी तरह से महिला मुद्दों पर आपके एक श्रेष्ठ संपादकीय के लिए पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था का लाडली मीडिया पुरस्कार 2015 का उत्तर प्रदेश का
आपको प्राप्त हुआ। आपकी पुस्तक यायावरी की कहानियां लौट के बताता हूं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हो चुका है। अकादमिक यात्राओं की दृष्टि से यूं तो देश के अनेक अंचलों में जाने का आपको मौका मिला, लेकिन इसके अलावा आपने अमेरिका, इंग्लैंड और इटली आदि देशों की यात्राएं की और वहां के संस्मरण भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके चर्चित होते रहे हैं। दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता, जन संदेश टाइम्स, डेली न्यूज, भास्कर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप नियमित रूप से लिखते रहे हैं। एक स्वतंत्र लेखक के तौर पर बीबीसी के साथ भी आपका जुड़ाव रहा। आपकी बनाई हुई एक फिल्म सीधी बात नो बकवास, इसको अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में भी काफी सराहना मिली थी। इंडिया टुडे के अंग्रेजी जो उनका एडिशन है, संस्करण है, उसके 35 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारत से 50 युवाओं का चयन किया गया था। उन 50 युवाओं में प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव भी चुने गए थे। आपका ब्लॉग मुकुल मीडिया बहुत लोकप्रिय रहा है और लगभग 3 लाख से अधिक हिट अब तक मिल चुके हैं। आपने अनुवाद के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और 3 पुस्तकों का आपने हिंदी में अनुवाद किया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपाल की प्रसिद्ध पुस्तक एन एरिया ऑफ डार्कनेस भी शामिल है। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव से कि वे इस अवसर पर अपना अनुभव, अपने विचार हम सभी से साझा करें। प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव। धन्यवाद सर। आदरणीय संजीव भानावत जी, प्रोफेसर संजीव भानावत जी, श्याम माथुर जी, सप्तऋषि मजूमदार जी और इस सारे आयोजन का तकनीकी पक्ष संभाल रही, अगर मैं सही हूं तो पृथ्वी सेंगर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुझे इस सम्मानित मंच पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। मैं अपनी बात बड़ी संक्षिप्त रखूंगा और बीच में मुझे एक और आयोजन से जुड़ना है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर लौट करके आऊंगा आपके सवालों के जवाब देने। तो मैं अपना जो वक्तव्य है वो शुरू कर रहा हूँ। ये वक्तव्य क्या, एक शोध आधारित आलेख है कि पिछले 5 सालों में मोबाइल ने तेजी से हमारे दिमाग और घरों में जगह जमाई है और दर्शकों का व्यवहार भी तेजी से बदला है। वे अब टीवी के महज दर्शक न होकर उपभोक्ता बन गए हैं और वे किसी भी एक तरीके पर ज्यादा देर नहीं टिकना चाहते। यह गति टेलीविजन के पारंपरिक माध्यम के पास नहीं। कम से कम शहरों में पूरा परिवार एक साथ बैठकर अब टीवी नहीं देखता। स्मार्टफोन और कंप्यूटर ने हमारी इन आदतों को बदल दिया है। आज की पीढ़ी की दुनिया अब मोबाइल और लैपटॉप में है, जो अपना ज्यादा वक्त इन्हीं साधनों पर बिताते हैं, जहां कोई भी कभी भी अपने समय के हिसाब से अपना मनपसंद कार्यक्रम देख सकता है। इंटरनेट के वीडियो, जिसमें धारावाहिक फिल्में, वृत्तचित्र, गाने आदि शामिल हैं, कंटेंट के स्तर पर युवाओं की आशा और अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए नवोन्मेष को बढ़ावा दे रहे हैं या इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां ना जबरदस्ती के विज्ञापनों का शोर है और ना ही कार्यक्रमों के बीच में छूट जाने का डर। कोई भी कभी भी अपने समय के हिसाब से पूरी सीरीज एक दिन में देख सकता है। इसके लिए हफ्ते या दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। पिछले 4 सालों में करीब 30 वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देश में लॉन्च हुए, जिसमें अमेरिकन ब्रांड अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स के अलावा आर्ट बालाजी, सोनी लिव, हॉटस्टार, ZEE5, वूट जैसे नाम शामिल हैं। ई मार्केटर के आकलन के मुताबिक साल 2020 में भारत में डिजिटल वीडियो देखे जाने वाले समय में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अभी एक वयस्क भारतीय औसतन 1 घंटा 12 मिनट वीडियो देखने में समय बिताता है, जिसमें से ज्यादातर जो ये संख्या है 76.5% ये वीडियो अपने मोबाइल पर देखते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में हम आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि एक ऐसा समय भी गुजरा है जब हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हुए हमारे बगल में बैठे किसी अजनबी फिल्म की किसी बात पर कुछ मजाक में बोले और उस पंक्ति में बैठे हुए हर इंसान के मुंह से हंसी छूट जाए। ये बात आपको समझानी पड़े। आपको ये बात मजाक अभी लग सकती है, पर कम से कम आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। भारत में कोरोना महामारी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म में अभूतपूर्व वृद्धि ला दी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और कंसल्टिंग फर्म EY की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 28 मिलियन से अधिक भारतीयों ने और 2020 में 53 मिलियन ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान किया, जो 49% की वृद्धि थी। वहीं अखबार के पाठकों में 36% की कमी आई है
और फिल्म के दर्शकों में कमी की दर 62% रही, जबकि टेलीविजन के दर्शकों में गिरावट की दर 13% है। ओटीटी शब्द पारंपरिक केबल या सैटेलाइट टीवी सेवाओं के उपयोग के बिना इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों, वेब श्रृंखला या किसी अन्य वीडियो सामग्री को दर्शकों तक पहुंचाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए टेलीविजन के मुकाबले किसी बड़े पूंजीगत व्यय की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास कंटेंट है तो इस विविधता वाले देश में आपको दर्शक मिल ही जाएंगे। नेटफ्लिक्स और अमेजन के दबदबे वाली इस दुनिया में भारतीय बाजार में कई देसी प्लेटफॉर्म्स ने भी सफलता का स्वाद चखा है। उदाहरण के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स की सहायक कंपनी ऑल्ट बालाजी ने सितंबर 2021 तक 1.8 मिलियन उपभोक्ताओं को जोड़ा, जो 3 साल पहले के 2,80,000 से कई गुना अधिक है। ZEE5 और सोनी लिव जैसे अन्य प्लेटफॉर्मों को न केवल भारत में बल्कि प्रवासी विदेशी दर्शकों ने सर माथे पर बैठाया। ये भारत की विविधता का ही कमाल है कि सारी दुनिया में अपने उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में बड़ा नाम बन चुके नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के सितारे भारत में इतने बुलंद नहीं। स्ट्रीमिंग गाइड जस्ट वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तीसरी तिमाही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार 25% की वृद्धि दर के साथ पहले स्थान पर है। इसी सूची में दूसरे स्थान पर अमेजन प्राइम वीडियो है, जिसकी वृद्धि दर 19% है, और वहीं नेटफ्लिक्स इन तीनों में सबसे पीछे तीसरे स्थान पर है और उसकी वृद्धि दर 17% है, जिसमें पहले के मुकाबले कमी आई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार लगातार तीसरी बार सबसे ज्यादा वृद्धि के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। इसी साल जनवरी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वृद्धि दर 20% थी, जो तीसरी तिमाही यानी सितंबर तक बढ़कर 25% हो गई। इसका सीधा असर नेटफ्लिक्स के ऊपर हुआ, जिसकी वृद्धि दर दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में 2% कम हुई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजन प्राइम की सफलता का एक बड़ा कारण इन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार भारतीय भाषाओं में कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट का उपलब्ध कराया जाना भी, जबकि नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध ज्यादातर कंटेंट अंग्रेजी या अन्य यूरोपीय भाषाओं में है। हालांकि नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट को भारतीय भाषाओं में डब कर रहा है, पर क्षेत्रीयता के मामले में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कंटेंट में ज्यादा भारतीयता दिखती है, और अमेजन भी भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम परोस रहा है। दूसरा कारण, अमेजन प्राइम परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग खातों का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि ये सब अमेजन प्राइम छतरी के नीचे हैं। आप अलग अलग डिवाइस पर एक ही शो और फिल्में देखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर एक ही समय में आपके खाते पर बहुत से लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक संदेश आएगा। नेटफ्लिक्स आपके प्लान के आधार पर 1 से 4 दर्शकों के बीच कहीं भी कार्यक्रम देखने की सुविधा देता है। इस सब में अपेक्षाकृत डिज्नी प्लस हॉटस्टार सेवा सबसे उदार है, जो अपनी सदस्यता 4 उपकरणों पर स्ट्रीमिंग की अनुमति देती है, जिसमें 7 अलग अलग प्रोफाइल बनाने का भी विकल्प होता है, और भारत में इसकी लोकप्रियता का यह एक बड़ा कारण है। आंकड़ों से इतर इतिहास गवाह है कि इंसानी व्यवहार में परिवर्तन कभी पीछे की ओर नहीं लौटता। कोविड काल ने हमारी जीवन की दिनचर्या को हर क्षेत्र में असर डाला है, और इसमें से बहुत सी चीजें अब हमेशा हमारे जीवन का अंग बन जाएंगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर समय बिताना उनमें से ही कुछ एक है। यानी अब ऐसा नहीं होने वाला है कि हम टेलीविजन की ओर दोबारा लौटेंगे, ये वृद्धि दर आगे ही बढ़ेगी। हालांकि ओटीटी पर अश्लीलता फैलाने के आरोप भी हैं, पर कंटेंट के तौर पर जो विविधता है वो अब टेलीविजन के पास नहीं। ऊपर से असमय विज्ञापनों की भरमार दर्शकों की कार्यक्रम में तल्लीनता को तोड़ती है। तथ्य यह भी है कि पारंपरिक रूप से फिल्मों को पहली टक्कर टेलीविजन से मिली, फिर वीसीआर और उसके बाद सीडी डीवीडी का दौर आया, पर हमारे सिनेमा हॉल रूप बदल बदल कर इन सब चुनौतियों का सामना करते रहे। ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिलती इस चुनौती का सामना टीवी और फिल्म उद्योग कैसे करेगा, इसका फैसला अभी होना बाकी। हो गया, कंप्लीट हो गया मुकुल जी? चलिए, धन्यवाद मुकुल जी। आपने देश में जो ओटीटी के नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, अद्यतन रिपोर्ट्स को उद्धृत करते हुए आपने उनकी स्थिति और भविष्य की संभावनाओं, कभी मुझे लगता है जैसा आपने जिक्र किया कि जब सिनेमा देखने जाते थे और पास वाले की टिप्पणी होती थी, शायद वो दौर था जब सिनेमा देखना आम भारतीय के लिए एक महोत्सव की तरह से था। किस तरह से तैयार होकर के और
उस पिक्चर हॉल में जाना और उस आसपास के परिवेश की संवेदनाओं का एहसास करना। लेकिन ये जो नए माध्यम आ गए हैं, इन्होंने हमें एक तरह से बिल्कुल ही अपने कमरे में या एकांतिक रूप से समेट दिया है। तो जो आपने बात कही कि इसके साथ जिस तरह की नई चुनौतियां उभर रही हैं, तो उम्मीद करते हैं आने वाले जो हमारे वक्ता हैं और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपने इन प्रश्नों पर या इन मुद्दों पर भी कहीं अपनी बात करेंगे। चलिए आइए अब हम चर्चा करते हैं श्याम माथुर जी से। श्याम माथुर जी का भी पिछले बहुत लंबे समय से पत्रकारिता से एक सक्रिय और गहरा जुड़ाव रहा है। यूं अकादमिक रूप से आपने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में मास्टर्स की उपाधि की, एलएलबी की परीक्षा पास की और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। उस रूप में हम ये दावा कर सकते हैं कि वो हमारे विद्यार्थी भी रहे जब राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम किया। लेकिन विद्यार्थी का ये संबंध मैत्री भाव में पिछले कई वर्षों से ज़्यादा रहा और हमारे विभाग में ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में, अतिथि व्याख्याता के रूप में भी लंबे समय तक जुड़े रहे। पत्रकारिता की शुरुआत श्याम माथुर की होती है 1983 से। दैनिक न्याय अजमेर से शुरू किया और वहां से आपकी यात्रा नवभारत टाइम्स, जिस दौर में राजेंद्र माथुर जी जैसे वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार, जिनको आज भी हिंदी पत्रकारिता में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है, उनके सानिध्य में रह करके पत्रकारिता एक तरह से सीखने का या पत्रकारिता में अपने कैरियर को एक तरह से परिपक्व रूप देने का जो लाभ मिला वो श्याम जी को मिला। उसके बाद समाचार पत्र नवभारत टाइम्स यहाँ से बंद हुआ, तब जलते दीप में काम किया कुछ समय तक। फिर राजस्थान पत्रिका का जो बॉलीवुड संस्करण था सिनेमा पर, उसको लंबे समय तक आपने संपादित किया। समाचार संपादक के रूप में उस अखबार से जुड़े रहे। इसी दौर में जलते दीप और हिंदुस्तान समाचार, ट्रिब्यून आदि पत्रिकाओं के लिए वे स्ट्रिंगर और अन्य रूप में लिखते रहे। माया इंडिया के संपादकीय दायित्व से भी वर्षों तक आप संबद्ध रहे। स्वतंत्र पत्रकार के रूप में पिछले लगभग 10-15 वर्षों से श्याम जी की जो पारी है वो बहुत ही एक उत्साहजनक कही है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है वो विशेष उल्लेखनीय है। राजस्थान का मीडिया विमर्श पर केंद्रित पहला पाक्षिक सिने मीडिया, इसका आप प्रकाशन और संपादन कर रहे हैं, और जो भी नवीनतम हलचल इस क्षेत्र में है उसकी जानकारी हमको इसके माध्यम से मिलती है। डीडी न्यूज में कॉपी एडिटर के रूप में आपने काम किया और आकाशवाणी के समाचार वाचक भी रहे। आपने 4 पुस्तकें लिखी, सिने पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता, जिनका प्रकाशन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने किया। सिने पत्रकारिता को भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रकारिता जो पुरस्कार है मौलिक पुस्तक लेखन के लिए, उसमें पुरस्कृत किया गया, और वेब पत्रकारिता को गृह मंत्रालय से पुरस्कृत किया गया, और ये पुरस्कार दिल्ली के विज्ञान भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने इन्हें भेंट किया था। अमिताभ बच्चन पर एक मोनोग्राफ आपने लिखा, सिनेमा का सफर, एक पुस्तक हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही आपकी प्रकाशित हुई। आपका एक डॉक्यूमेंट्री रहेंगे यहीं अपने निशान, भारतीय सिनेमा की एक सदी की जो ऐतिहासिक यात्रा थी उस पर आपने तैयार किया, जिसको एक तरह से स्पॉन्सर किया था फिल्म्स डिवीजन ने। फिल्म्स डिवीजन की ही एक तरह से ये भेंट थी, जिसके निर्माण में श्याम माथुर का विशेष योगदान रहा। वर्तमान में सिने ब्लिट्स, डिस्कवरी, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, डिज्नी पिक्चर स्टूडियो आदि के लिए आप हिंदी अनुवाद का कार्य कर रहे हैं, और अनुपम खेर जैसे प्रख्यात फिल्म अभिनेता की जो कंटेंट एजेंसी है बॉलीवुड न्यूज सर्विस, इसके साथ भी आप पिछले 5-7 वर्षों से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से ये बदलाव हो रहा है मीडिया के क्षेत्र में, उसके भी आप बहुत सूक्ष्म दृष्टा हैं, और यहाँ के स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्तंभ लिखते रहते हैं। तो आइए हम जानते हैं भाई श्याम माथुर के अनुभव इस विषय में। श्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भानावत जी। सबसे पहली बात तो यह है कि मीडिया जर्नल्स यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन टुडे ने हमेशा वक्त की नब्ज पर जो अपना हाथ रखा है वो सब सचमुच प्रशंसनीय और सराहनीय काम है, कि जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं, जो आज जो समसामयिक दुनिया में जो कुछ घट रहा है उस पर कम्युनिकेशन टुडे लगातार अपनी निगाहें रखता है। और ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल ताजा तरीन विषय जिसे हम कह सकते हैं मीडिया से जुड़ा हुआ, जो उथल पुथल भरा मीडिया का दौर है, उस पे कम्युनिकेशन टुडे ने ये वेबिनार आयोजित किया। निश्चित तौर से इससे जुड़ के मुझे बहुत ही प्रसन्नता और खुशी का अनुभव हो रहा है।
आज सवेरे ही मैं शशि थरूर का कॉलम एक हिंदी अखबार में पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि परिवर्तन लगभग हर दौर में होता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवर्तन ही सृष्टि का एकमात्र शाश्वत नियम है। लेकिन अभी जो दौर है, वर्तमान दौर में जो परिवर्तन हो रहा है, वो लगभग बुलेट ट्रेन की गति से हो रहा है। समाज पहले भी बहुत बदला है, हम लोगों ने भी पूरे बदलाव को देखा है, लेकिन इस दौर में जो बदलाव और परिवर्तन की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से हो रही है, और देखते ही देखते चीजें हमारे सामने बदल रही है, नए स्वरूप में सामने आ रही है। इसी बदलाव का एक बड़ा असर हम लोग देख रहे हैं कि मनोरंजन और मीडिया उद्योग पे भी हो रहा है। और वहां से जब हम बात करते हैं ओटीटी की, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत ही तेजी से दर्शकों को अपनी गिरफ्त में लिया है। हम सबको पता है कि खास तौर पर कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद ओटीटी कंटेंट की डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसी दौरान तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए। और जिस दौर में सिनेमाघर बंद थे, उस दौरान तमाम फिल्मों और वेब सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया गया, और लोगों ने लॉकडाउन का जो दौर था वो ओटीटी के जरिए बड़े आराम से गुजारा। मेरा अपना मानना यह है कि ओटीटी के लोकप्रिय होने के बाद जो एक सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये कि अब हमको एक नॉन फिक्शन कंटेंट मिलने लगा है। हम सब जानते हैं कि जब अब तक सिनेमा और टेलीविजन पूरी तरह फिक्शन पर आधारित था, अर्थात काल्पनिक कहानियां जिनका हमारी जिंदगी की वास्तविकता से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता था। अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियां होती थी हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा वास्तविक कहानियां नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे ही ओटीटी ने अपने पांव पसारे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉन फिक्शन कहानियों की एक बिल्कुल नई दुनिया लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चाहे वो कोई रियलिटी शो हो, कोई डॉक्यूमेंट्री हो, या फिर कोई वेब सीरीज। ऐसा लग रहा है कि मानो सैकड़ों कहानियां सालों से हमारी स्मृतियों में, हमारी यादों में कहीं दबी हुई थी, और अब वे सब एक साथ बाहर आने को जैसे कि बेकरार है। कौन सोच सकता था कि हमारे देश के मशहूर वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई पर एक वेब सीरीज बनाई जा सकती है। हाल ही सोनी लिव ने रॉकेट बॉयज टाइटल से इस सीरीज को पेश किया। बड़ी तादाद में दर्शक इसको पसंद भी कर रहे हैं। और हम में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि लगभग 1.5 साल पहले हर्षल मेहता जब स्कैम वेब सीरीज लेके आए थे, जो हर्षद मेहता की जिंदगी पर आधारित थी, और उस सीरीज ने ओटीटी वेब सीरीज की दुनिया में धूम मचा दी थी। और लोगों ने देखा कि किस तरह गुजराती थिएटर का एक अनजाना सा आर्टिस्ट प्रतीक गांधी, जिसने इस सीरीज में हर्षद मेहता का रोल किया था, वो रातों रात एक स्टार का दर्जा उसने पा लिया। ये वेब सीरीज की वजह से संभव हुआ। हम बहुत से लोगों को ये भी पता होगा कि पिछले साल नेटफ्लिक्स ने ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ की जिंदगी पर वेब सीरीज द क्राउन का 4था सीजन पेश किया। ये सीजन इतना, मतलब ये सीरीज इतनी पसंद की जा रही थी कि इसके 4 सीजन आ गए, और चारों सीजन बहुत पसंद किए गए। कुछ अरसा पहले नेटफ्लिक्स ने ही इजरायली जासूस एली कोहेन की जिंदगी पर आधारित एक सीरीज द स्पाई इसको रिलीज किया, और इसमें भी लोगों ने बड़ी संख्या में लोग इस सीरीज से जुड़े और इसको पसंद किया। तो कुल मिला के बात ये मायने रखती है कि हमारे आसपास की दुनिया में जितनी भी कहानियां बिखरी हुई हैं, जो किस्से कहानियां, उनको कौन और कितने प्रामाणिक तरीके से दर्शकों तक पहुंचा सकता है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस बात को साबित किया कि अगर आप अपनी जिंदगी से जुड़ी, अपने आसपास के माहौल में जो बिखरी हुई कहानियां हैं, उनको बेहद ही प्रामाणिक अंदाज में, बहुत रोमांचक अंदाज में, भले ही वो कल्पना का सहारा उसमें कम हो, लेकिन आप उसको लगभग रियलिटी के अंदाज में अगर पेश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि दर्शकों की कोई कमी किसी लेवल पे नहीं है। इस वेबिनार के सिलसिले में मैंने नेटफ्लिक्स की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोनिका शेरगिल, उनको ईमेल के जरिए इंटरव्यू किया। मोनिका जो है नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड भी हैं, और किस तरह का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे जाएगा वो लगभग मोनिका शेरगिल ही तय करती है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि 2019 की तुलना में साल 2020 में हमारे देश में नॉन फिक्शन सीरीज के दर्शकों की संख्या 250 गुना बढ़ गई थी। मैं फिर से कहूंगा 250 गुना। तो आप अंदाज लगाइए कि कितनी तेजी से दर्शक नॉन फिक्शन की तरफ, वेब सीरीज की तरफ जा रहे हैं। और मोनिका का यह भी कहना था कि इस रुझान को देखते हुए साल 2021 में
बड़ी संख्या में फिल्मकारों ने नॉन फिक्शन को अपनाया और मोनिका का अपना अनुमान है कि इस साल के यानी कि 2022 के आखिर तक दर्शकों की यह संख्या 2019 की तुलना में 300 गुना तक बढ़ सकती है। आप अंदाज लगाइए कि कितनी तेजी से ये परिवर्तन जो है, मनोरंजन की दुनिया का ये परिवर्तन कितनी तेजी से, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ये परिवर्तन हमारे सामने हो रहा है। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है, मेरा अपना ये मानना है कि दर्शकों के सामने एक व्यापक सिनेरियो आ गया है। अभी तक हम जब मनोरंजन की तलाश करते थे तो बहुत शुरू में सिनेमाघर, उसके बाद हम बात करें तो टेलीविजन, वीसीआर, डीवीडी, लेकिन अब उनके सामने एक पूरी दुनिया खुल गई है। उनको अपनी पसंद की कहानियां अपने पसंदीदा फॉर्मेट में देखने की छूट मिल गई है। और इसी तरह फिल्मकार जो हैं, जो हमारे दौर के फिल्मकार हैं, उनको भी एक नए प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत वैचारिक आजादी मिल गई है ना। पहले जहां हम सोचते थे कि फिल्मकार के सामने दिक्कत थी कि वो कैसे फाइनेंस जुटाएगा, कैसे वो अपनी फिल्म के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस का व्यवस्था करके और लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सामने आए हैं, उसके बाद हमारे तमाम फिल्मकारों के सामने एक नया परिदृश्य ही सामने आ गया है। और अब वे अपनी पसंद की फिल्मों, अपनी पसंद की कहानियों पर वेब सीरीज और फिल्में बनाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि हर अच्छी कहानी अपने दर्शक तो तलाश ही लेगी, कहीं ना कहीं उसका दर्शक वर्ग भारत में है, और इसीलिए नई नई कहानियां हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज पर सामने आ रही है। अब सवाल उठता है कि जो वेब सीरीज और ओटीटी कंटेंट है, इनकी इकोनॉमी किस तरह चल रही है, कैसे ये इतने बड़े पैमाने पर इन संभव हो पा रहा है कि हम लोग आए दिन नई वेब सीरीज, नई फिल्में, नए प्लेटफॉर्म की चर्चा सुन रहे हैं। तो दरअसल जो भी छोटी बड़ी कंपनियां मीडिया उद्योग से अभी जुड़ी हुई हैं, वे अब ऑनलाइन कंटेंट पर ही फोकस कर रही है। और ओटीटी की दुनिया अब इतनी विशाल और व्यापक हो गई है कि मेरा अपना मानना यह है कि आने वाले समय में अगर हमको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग युद्ध ऐसे शब्द सुनाई देने लगे तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओटीटी की इस जंग में आगे बने रहने के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च कर रही है बड़ी तमाम कंपनियां, दुनिया भर की कंपनियां। दुनिया की जो सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है डिज्नी, वो उसको लगभग 100 साल हो गए हैं और अगले साल डिज्नी अपना 100वां जन्मदिन मनाने जा रही है। और हाल ही कंपनी ने ऐलान किया है कि वे अपने 19 लाख करोड़ रुपए के कारोबार को एक नया स्वरूप देने जा रही है, जिसमें ओटीटी कंटेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका की जो मार्केटिंग कंपनी है मॉर्गन स्टैनले, उसका अपना अनुमान है कि स्ट्रीमिंग कंपनियां इस साल नए कंटेंट पर 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। यह राशि 10 साल पहले की तुलना में दुगना है। पिछले दिनों हम लोगों ने डिज्नी के सीईओ बॉब चॉपेक का एक इंटरव्यू पढ़ा था, कई चैनल्स पे भी वो इंटरव्यू आया था, और उसमें बॉब ने कहा था कि इस साल उनकी कंपनी 68,000 करोड़ रुपए सिर्फ नए कंटेंट पर खर्च करने वाली है। और दूसरी तरफ अमेरिका में जो एप्पल टीवी प्लस है, वो अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए कंटेंट पर, सिर्फ कंटेंट पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान पहले ही कर चुका है। तो साफ जाहिर है कि जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का बाजार है, जो मार्केट है, जो दर्शक वर्गों से जुड़ने की बात है, वो बहुत तेजी से गर्म होने वाला है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि आए दिन नए कंटेंट, नए वेब सीरीज और नए प्लेटफॉर्म्स ओटीटी से जुड़े हुए वो चर्चा में आ रहे हैं। बदलाव का जो ये तेजी से जो स्वरूप बदला है, खासतौर से मीडिया जगत में, मनोरंजन जगत में, इस बदलाव के बारे में मुझे हमारी सदी के सर्वाधिक जो प्रभावशाली अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, उनकी भी एक टिप्पणी याद आ रही है। अमिताभ ने ये टिप्पणी लॉकडाउन के दौरान साल 2020 में की थी, और इस टिप्पणी में उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था कि मैं पिछले 51 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और कई बदलावों का मैं गवाह रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि सरवाइव करने का सबसे सही तरीका है कि बदलाव को गले लगाइए, उससे लड़ने की कोशिश मत करिए। अमिताभ ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और लिखा कि देश भर में लॉकडाउन से मल्टीप्लेक्स बंद पड़े हैं, आप फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के साथ फिल्में देखने अपने नजदीकी मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल में नहीं जा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब आपका घर ही मल्टीप्लेक्स में बदलने जा रहा है, जहां घर बैठे फुल एंटरटेनमेंट कर सकेंगे। तो 2 साल पहले अमिताभ बच्चन ने भी यह संकेत कर दिया था कि अब हमारा घर एक मल्टीप्लेक्स या सिनेमा घर का स्वरूप
लेता जा रहा है। और यह दौर हम देख रहे हैं कि अमिताभ की वो बात 2 साल पुरानी बात अब लगभग सक्रिय मतलब वास्तविकता के नजदीक पहुंच गई है। हम देख रहे हैं कि लगभग हर घर में, हर दौर में, हर पीढ़ी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात कर रही है, वेब सीरीज की बात कर रही है। यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल और आता है, मैं खुद सिनेमा का विद्यार्थी रहा हूं, तो ये सवाल मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ओटीटी की जो ये लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उसके बाद हम क्या विचार करें कि फिल्म उद्योग का भविष्य क्या अब भी उतना ही उज्जवल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। खास तौर पर सिनेमा और मनोरंजन की दुनिया में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, वो तो इस सवाल का सामना कर ही रहे हैं। और इसी सवाल से जुड़ी एक आशंका यह भी है कि जो बड़ी तेजी से ये दुनिया बदल रही है, उसमें कहीं सिनेमाघर, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर कहीं पीछे नहीं छूट जाए। क्योंकि हाल के दौर में हमने देखा कि मल्टीप्लेक्स आने के बाद सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है। और ऐसे सिनेमाघर अब सिर्फ छोटे कस्बों और शहरों तक ही सिमट गए हैं। और चिंता की बात यह है कि ओटीटी कंटेंट ने ऐसे कस्बों और शहरों में भी अब सेंध लगा ली है। आज आलम यह है कि सस्ती दरों पर उपलब्ध इंटरनेट की इस सुविधा के कारण छोटे छोटे गांवों के नौजवान भी तांडव और मिर्जापुर या ऐसे दूसरे जो भी वेब सीरीज है, जो कंटेंट है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम सोच रहे थे कि सिनेमा को छोटे शहरों से, छोटे कस्बों से शायद सहारा मिलता रहेगा और कहीं ना कहीं सिनेमाघर उसी मजबूती से कायम रहेंगे। लेकिन जिस तेजी से इंटरनेट सबके लिए सुलभ हो रहा है, इंटरनेट का एक्सेस बहुत आसान हो गया है, बहुत कम दरों पे इंटरनेट उपलब्ध है, तो ऐसा लग रहा है कि अब छोटे कस्बे, गांव और शहर और महानगर ये सब ओटीटी की गिरफ्त में, ओटीटी के सम्मोहन में ऐसा लग रहा है कि बुरी तरह फंस चुके हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण बात मुझे ओटीटी के संदर्भ में लगती है, वो ये कि ओटीटी पे किस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है। तो ये समाज शास्त्रियों का अध्ययन का अपना विषय है और इससे किस तरह के बदलाव होंगे, और जो ओटीटी में जो कंटेंट पेश किया जा रहा है, जैसे हम लोग सेक्स और वायलेंस और हिंसा, गाली गलौच, ये तमाम चीजें जो आ रही हैं, वो कहाँ जाकर थमेगी और उससे देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत जल्दी शायद स्पष्ट भी हो जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए भविष्य का मनोरंजन ओटीटी, इस पर चर्चा करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे आज के और एक्सपर्ट हैं वो भी इस विषय पर शायद रोशनी डालें और हम एक स्पष्ट तस्वीर, एक स्पष्ट दिशा हमको मिले। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। आपने बहुत सारे आंकड़ों के आधार पर आज के हालातों का उल्लेख करते हुए भविष्य की आशा आकांक्षाओं की ओर दृष्टिपात किया। किस तरह से वेब सीरीज ने कंटेंट की दुनिया को बदल दिया है। केवल अश्लील या हिंसक मनोरंजन ही नहीं, बल्कि किस तरह से सारगर्भित, रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर केंद्रित वेब सीरीज भी आम जनमानस में लोकप्रिय हो सकती है। मुझे लगता है आपका जो मुख्य निचोड़ रहा वो यही है कि जब इन माध्यमों में रचनाधर्मी लोग जुड़ेंगे, जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज अरबों रुपया इसमें निवेश कर रही हैं, तो इस प्रकार के जब रचनाधर्मी लोगों का इसमें जुड़ाव होगा तो निश्चय ही आने वाले दौर में मनोरंजन की एक नई दुनिया गांव कस्बों से लेकर हमारे इस शहर और महानगरीय जीवन, संस्कृति, सभ्यता में हमको देखने को मिलेगी। और उस पर चिंतन शुरू हो गया है और उस पर कहीं ना कहीं कार्य भी शुरू हो गया है। चलिए, आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडा को। यूं तो फिजिक्स के विद्यार्थी रहे, शायद नहीं सोचा होगा कि मीडिया की दुनिया में शिक्षण के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से पिछले 20-25 वर्षों में उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। लगभग 15 साल से तो उनके उस अकादमिक योगदान का मैं प्रत्यक्ष सृष्टा रहा हूँ। फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन के बाद उड़ीसा का ही बीजू पटनायक फिल्म इंस्टीट्यूट, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़ते हैं और वहां से ट्रेनिंग लेकर के 2000 के आसपास उस शिक्षण से जुड़ते हैं। जब इनका प्रोफाइल देख रहा था तो बड़े रोचक अंदाज में उन्होंने लिखा कि किस तरह की उनकी यात्रा में वैविध्य रहा है, और इम्पॉसिबल शब्द में इन्होंने आई और एम को अलग अलग कर दिया। आई एम, वो जो दृढ़ता है, वो जो जिजीविषा है, वो जो समर्पित उनके प्रयत्न हैं अपने मिशन और लक्ष्य को लेकर के, वस्तुतः वही राजीव पांडा के व्यक्तित्व का मुख्य परिचय है। राजीव जी ने अपना अध्यापन कार्य,
विप्स विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज वहाँ से शुरू किया और उसके बाद वो जुड़ते हैं लगभग 2010 में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली में, और उसके बाद हमारा इनका विश्वविद्यालय स्तर पर एक विशेष जुड़ाव होता है जब इन्होंने न सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय में वरन देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों में डीएसएलआर फिल्म के माध्यम से किस तरह से छोटी छोटी सोशली रिलेवेंट समाज केंद्रित इस तरह के विषयों पर हमारी युवा पीढ़ी फिल्म बना सकती है, इसकी जो उन्होंने प्रेरणा दी और जिस तरह से विद्यार्थियों को तैयार किया, आज उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और जिस कंटेंट की बात अभी हमारे दोनों मित्रों ने कही, उस श्रेष्ठ कथ्य की दिशा में उन्होंने विशेष योगदान दिया है। आप स्वयं का भी इंडस्ट्री का भी बड़ा व्यापक एक्सपीरियंस रहा, अनेक कंपनीज के लिए आपने इस तरह के फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस तैयार किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, सीरियल्स में पार्टिसिपेट किया, तो कहना चाहिए कि एक बहुआयामी अनुभव आपका रहा है। और एपीजे में अध्यापन करने के बाद इन्होंने किट्स उड़ीसा, क्योंकि मूलतः आप वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ आपने किट्स यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ आपने ज्वाइन किया और इसी यात्रा में आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम सिलचर में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ से अपना पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो मैं डॉक्टर राजीव पांडा का इस मंच पर स्वागत करता हूँ। एपीजे में रहते हुए उन्होंने कई वेबिनार्स का आयोजन किया और देश के अनेक प्रमुख मीडिया स्टॉलवर्ड्स के साथ संवाद करने का उस वेबिनार के माध्यम से, जिसमें प्रसून जोशी का नाम प्रमुख है, राज नायक का नाम और अमर कौशिक जैसे फिल्म निर्देशक, बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक, उनको आपने आमंत्रित किया और उनके साथ संवाद किया। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजीव पांडा से कि वे इस अवसर पर जो अनुभव उनका इस माध्यम में है वो हमारे साथियों के साथ शेयर करें। डॉक्टर राजीव कुमार पांडा। राजीव जी, माइक आपका, माइक अनम्यूट कीजिएगा। लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या हो गई, वो लेफ्ट कर गए हैं। हाँ, जुड़ गए वापस। राजीव जी ने मैसेज किया है कि वो नहीं, राजीव जी किसी ने डिसेबल नहीं किया है। राजीव जी, स्क्रीन पे नीचे लेफ्ट हैंड में सबसे पहले शायद माइक्रोफोन का ही सिंबल है। वो फिर लेफ्ट कर गए। चलिए, या तो वो जब तक वो वापस जुड़ते हैं तब तक अपन सप्तर्षि जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी बात कहें। अब तक हमने हमारे दोनों साथियों से उसके अकादमिक और संभावनाएं हैं उन पर बात की। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जो स्वयं ओटीटी का जो ये माध्यम है इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, कई कैपेसिटीज में, डायरेक्टर के रूप में, कॉपीराइटर के रूप में। तो एक तरह से उन्होंने इस दुनिया को बहुत निकटता से देखा, समझा और महसूस किया, या मैं ये कहूँ कि उसको एक तरह से वो जी रहे हैं। सप्तर्षि मजूमदार से मेरा परिचय डॉक्टर राजीव पांडा ने ही कराया था। जब मैंने उनसे कहा कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सक्रिय रूप से इन माध्यमों से जुड़ा हुआ हो, तब राजीव जी ने मुझे रेफर किया सप्तर्षि जी से और वो हमारे इस अनुरोध पर आए। ये हमारे इस पूरी चर्चा को मुझे लगता है और अधिक
जीवंत बना पाएगा। तो मैं एक लेखक, निर्देशक और क्रिएटिव प्रोड्यूसर सप्तर्षि मजूमदार का यहाँ स्वागत करता हूँ। मजूमदार जी का अनुभव बड़ा नमस्कार सर। उन्होंने I2 यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री इन जर्नलिज्म में किया, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस किया, और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, वहां से अपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की। और विदेशों में रहने का आपको अनुभव मिला, न्यूयॉर्क, सिडनी आदि शहरों में रहते हुए आपने जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, मॉडर्न आर्ट, आइडियाज, स्टोरी टेलिंग और कंटेम्प्रेरी आर्ट आदि, इन विषयों के बारे में भी प्रशिक्षण लिया। फ्रीलांसर के रूप कुछ कह रहे? जी सर, मैं बोल रहा था अभी सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? पता नहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप सप्तर्षि सुन लें, फिर आपसे बात कराएंगे। मैंने वो टाइम सर प्लीज राजीव सर को पहले बोलने दीजिए, मैं तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो चलिए राजीव जी, मैं इंट्रोड्यूस आपको करा ही चुका हूँ, तो बचा हुआ परिचय सप्तर्षि जी का उसके बाद दूंगा। तो आइए आपको सुनते हैं, डॉक्टर राजीव कुमार पांडा जी। नहीं सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि एम मौके पे जो है वो लैपटॉप का माइक ड्यू टू साइज सर वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, और टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ और टेक्नोलॉजी मेरे को अनम्यूट करने नहीं दिया, तो तुरंत मैंने अपना स्मार्टफोन उठाया और ये जो जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, तो आज मोबाइल जो है वो मेरे हेल्प में आया। और बनावत सर आपको बहुत बहुत आभार, क्योंकि बहुत मौके पे जो है सर आपने मेरे को बुलाए हैं, और मैं आपके साथ मिलके मैं यही कहूंगा कि सर मैंने जितनी फिल्में बनाई और उसमें बनाने से ज्यादा मैंने आपसे सीखा हूँ। ये मैं सबको बता देता हूँ, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में करीबन हमने 7-8 साल वर्कशॉप की, और ये कहने में सर मैं झिझक महसूस नहीं करूंगा कि मैं और भी 50 जगहों पे मैंने वर्कशॉप किया हूं, बट जिस तरीके का आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है उस वर्कशॉप के दौरान, वो जो 3 दिन के दौरान आप अपने आप को भूल जाते हैं, और बिल्कुल आप एक स्टूडेंट की तरह, मतलब कभी कभी ये नहीं लगा कि आप उस यूनिवर्सिटी, उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, और एक होता है ना कि सर, तो लेकिन आप बिल्कुल सर पूरा टाइम, पूरा समय आप बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और उसी का नतीजा है कि जितनी भी बेहतर फिल्में हमने बनाई हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ, आज भी जब मैं देखता हूं तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि चलिए ये सब फिल्में हमने वहीं राजस्थान की धरती पे जयपुर में जाके ये हमने बनाए हैं। तो आज दोबारा मेरे को मौका देने के लिए, जब दिल्ली में था तब सर आपने बहुत बार मौका दिए, और जब मैं उड़ीसा आया तो यहाँ से भी आपने मेरे को मौका दिए, और जैसे सप्तर्षि यहाँ पे है, सप्तर्षि मैं थोड़ा सा बीच में क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा वो था, बट मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि आपका परिचय चल रहा था और उसी बीच में दोबारा वहां पे इंटरप्ट किया। मेरे को लगा कि आप स्टार स्पीकर हैं, तो हालांकि मैंने आपको मतलब आप हमारे छात्र रहे, लेकिन ऐसा है कि आज भी हम अपने आप को एक लर्निंग पर्सन मानते हैं, तो मेरे को लगा कि आप अगर पहले बोल देंगे तो कहीं जो लिसनर्स हैं वो चले ना जाए, तो इसीलिए मेरे को लगा कि आपको बाद में बोलने दिया जाए, उससे पहले मैं बोल लेता हूं, तो इसीलिए मैंने बीच पे जो है इंटरप्ट किया। तो जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो उस विषय को शुरू करने से पहले मैं कुछ डेटा आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, जो बहुत सारे एजेंसीज मिलके उस डेटा को जो है तैयार किए हैं। बेसिकली ये डिजिटल 2022 का डेटा है, और इसमें GWI से लेके, हुटसूट से लेके, सेमरस से लेके बड़ी सारी जो कंपनियां हैं वो मिलके इस डेटा को तैयार किए हैं, और उनके हिसाब से उनके हिसाब से अगर आप देखें तो करीबन 8 बिलियन लोग, टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें से लगभग 5.5 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो यूनिक मोबाइल फोन यूजर्स हैं, और उनमें से अगर आप बात करें तो करीबन 4.95 बिलियन या करीबन आप मान सकते हैं कि 5 बिलियन लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज करते हैं,
और करीबन 4.62 बिलियन लोग हैं जो एक्टिव सोशल मीडिया यूजर हैं। और अगर आप डिजिटल ग्रोथ की बात करेंगे तो हर साल करीबन 80 मिलियन लोग जो है इससे जुड़ते हैं टोटल पॉपुलेशन में, कि कितनी तेजी से आप देखिए जो डिजिटल ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। एंड अगर आप बात करें जो हम पहले एक बात करते थे डिजिटल इन इक्वलिटी की, जिस तरीके से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिन आएगा जिसमें ये जो डिजिटल डिवाइड या डिजिटल इनइक्वलिटी जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा करते ही रहते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो इस डेटा से प्रतीत होता है। ये जो जितनी भी ये जो डेटा है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे जो लोग इसको यूज कर रहे हैं उनकी जो मीडियन एज है वो करीबन 31 साल के हैं पूरे, अगर वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें। और उसमें अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो मीडियन एज ऑफ द पॉपुलेशन जो डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हैं वो करीबन 29 इयर्स की है, 29 साल की है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि करीबन 7 घंटा 7 आवर्स लोग इंटरनेट पे अपना समय बिताते हैं, लाइक टाइम स्पेंट यूजिंग द इंटरनेट वो करीबन 7 आवर्स है। अगर आप बात करेंगे ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग सर्विसेज की तो उसमें लोग करीबन 3 आवर्स 20 मिनट उसमें वो टाइम जो है व्यतीत करते हैं। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो उसमें करीबन 2.5 आवर्स। अगर आप डिफरेंट ऑनलाइन प्रिंट मीडिया और इन सब की बात करेंगे तो उसमें करीबन 2 आवर्स। और इसमें जो चेंजेस हैं हर साल ये देखा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले जो है इसमें 1 आवर 33 मिनट्स का इजाफा हुआ है। और इसके पीछे हमारे देश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो हम इससे पिछड़े नहीं है, और लगभग हम जो वर्ल्ड की जो डेटा है उसी के बराबरी हम लोग कर रहे हैं। अगर मुझे पूछेंगे या जो जितने भी सीनियर प्रोफेसर्स और लोग बैठे हैं, तो हम लोगों की जो भी एंटरटेनमेंट का जो मीडियम रहा है वो ट्रेडिशनल चैनल्स का रहा है, जिसमें बाद में ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन और केबल टीवी वो जुड़ा है। और वो आप ये कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन और केबल टीवी दे वे पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर डिकेड्स। एंड उसमें जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है करीबन 2007 के आसपास, जब मार्केट में ये ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो हमारा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी बदल गया है। एंड धीरे धीरे ये बदल भी रहा है। जैसे हम लोग पहले ट्रेडिशनली हमारी जो मूवीज या अदर ऑडियो वीडियो कंटेंट जिसको हम कंज्यूम करते थे जनरली, जैसे मनावत सर ने पहले बोले कि हम सिनेमा हॉल में जाते थे या टेलीविजन पे हम उसको कंज्यूम करते थे। धीरे धीरे VHS, DVDs, ब्लू-रेज इन सब का दौर आया। फिर उसके बाद केबल टीवी आया, एंड देन व्हेन डायरेक्ट टू होम केम, DTH टेक्नोलॉजी थ्रू सैटेलाइट, उसमें काफी इजाफा हुआ और हम लोग बड़े हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्ट और ऑन डिमांड जो कंटेंट है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आया। एंड जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है वो और भी पर्सनलाइज्ड हो गया है। और शुरुआत में अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तो उसके इम्पैक्ट इतनी ज्यादा नहीं था, बट 2012 के बाद से जो है इसमें काफी इजाफा हुआ है। हमारी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो एक्सपीरियंस जो है उसमें। और अगर आप देखेंगे तो कुछ और डेटा के साथ में आप लोगों के सामने आ रहा हूं, जिससे पहले अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे मैंने नंबर बताया तो डिजिटली कनेक्टेड जो सर्विसेज हैं
उसमें काफी इजाफा हो रहा है और ऑडियंस दिन ब दिन इसमें जो है वो आपके बढ़ रहे हैं। अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो जैसे सर ने भी बताया कि ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, जिसको हम ओटीटी प्लेटफॉर्म या ओटीटी सॉल्यूशन हम इसको कह रहे हैं। और ओटीटी सब ये उन सब चीजों को रेफर करता है। ये एक ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विस है जो अपना कंटेंट ओवर द इंटरनेट डिलीवर करता है एंड ओवर द टॉप ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स। तभी इसका नाम ऐसे पड़ा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ये बाकी जैसे आपका केबल टेलीविजन हो गया या केबल सब्सक्रिप्शन हो गया, इन सबको ये बाईपास कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको इसका नाम ऐसे हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसमें आपका नेटफ्लिक्स है, आपका हॉटस्टार है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, अमेजन प्राइम है, म्यूजिक सर्विसेज में जो है स्पॉटिफाई वगैरह है। तो इस तरीके के बड़े सारे सर्विसेज हैं। अगर आप इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या रीजन रहा है इन सब स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अमेरिकन ओटीटी मार्केट जो है वो धीरे धीरे सैचुरेशन की ओर जा रहा था। तभी जो वहाँ के जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, they shifted their focus to other international markets। और इंडिया से बड़ा बेहतर मार्केट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन यंग पॉपुलेशन है वो उनके जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। क्योंकि इंडिया एक ऐसा, हमारा देश एक ऐसा है, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरटेनमेंट एंड मीडिया मार्केट ग्लोबली। एंड हम ये आशा करते हैं कि ये जो मोमेंटम है ये आगे को भी जारी रहेगा। ये जो वीडियो ऑन डिमांड जो सर्विस है, तो इसी वजह से आप देखिए कि एंड लोगों के पास धीरे धीरे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट कनेक्शंस, इन सब सुविधाओं का जो है वो धीरे धीरे इसमें इजाफा हो रहा है। एंड अगर आप भारत के सरकार की जो स्ट्रेटेजी देखेंगे तो उन्होंने काफी चीजों को सिंप्लीफाई किया है, चाहे वो टैक्सेशन सिस्टम हो, चाहे वो आपका जो नीतियां हैं रिलेटेड टू लेबर रेगुलेशंस, ये सब एनकरेज किया है ग्लोबल कंपनियों को हमारे देश में आके इन्वेस्ट करने की। एंड धीरे धीरे आप देखिए बनावत सर ने और श्याम माथुर सर ने भी ये बताया कि जियो जब से आया है भारत में, तो तब से आप देखिए कि काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, काफी ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि बढ़ावा मिला है ओटीटी प्लेयर्स को, क्योंकि लोगों को सस्ते दरों में इंटरनेट मिलने लगा है। एंड अगर आप अगर ये चीज देखें कि एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है दर्शकों के पास, तभी हम कंटेंट, ओटीटी कंटेंट को जो है धीरे धीरे प्रीफर कर रहे हैं। और जैसे कि भानावत सर ने ये विषय रखा कि ये भविष्य का मनोरंजन है, ये सच में धीरे धीरे ये भविष्य का मनोरंजन बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए आप जब केबल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें, हालांकि उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट जब आप इस तरीके के वीडियो ऑन डिमांड या ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए कि सेवरल जॉनर्स ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट टीवी शोज हैं, एनिमेशन से, थ्रिलर्स है, चिल्ड्रन, फैमिली, स्पोर्ट्स। तो ये कैटेगरी जो है, चाहे वो कॉमेडी का कैटेगरी हो, रोमांटिक फिल्मों का या रोमांटिक प्रोग्राम का कैटेगरी हो, डॉक्यूमेंट्रीज का हो, म्यूजिक का हो, ड्रामा का हो, हॉरर का हो, जैसे श्याम माथुर सर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे रॉकेट बॉयज के ऊपर, अलग अलग तरह के जो कंटेंट हैं, इतनी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है हमारे पास। जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं तो फिर दर्शक जो होता है वो चूजी हो जाता है और वही मालिक है। क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि यू डोंट हैव एनी कैप्टिव ऑडियंस। आपको जो ऑडियंस का अटेंशन जो है उसको ग्रैब करना पड़ता है, उसको छीन के लाना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। तो इसीलिए जब हम एक बुके हमारे दर्शकों को
ऑफर करते हैं, इतने सारे वैरायटी जब हम ऑफर करते हैं, इसी वजह से जो है मेरे हिसाब से ये भविष्य का मनोरंजन बनने जा रहा है। बीच में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये एक इल्जाम ये लगा था कि इसमें ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, वो टीवी शोज या टीवी में चलने वाले जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं या जो मूवीज हैं वो उसी को जो है अपने प्लेटफॉर्म पे ये स्ट्रीमिंग करा रहे हैं। बट उसको भी देखते हुए इनके कंटेंट में भी बदलाव हुआ और बड़े सारे ओरिजिनल कंटेंट जो है, वैरायटी ऑफ कंटेंट जो है वो आज उपलब्ध है और ऑडियंस उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक हाई वैल्यू कंटेंट है और इसमें मेरा चॉइस है, जो मैं देखना पसंद करूंगा वही मैं देख रहा हूं। ऐसा एक जमाना था मेरे को सर अभी भी याद है, बचपन में दूरदर्शन के पास बहुत ही अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट होते थे, उनकी जो ट्रांसमिशन क्वालिटी होता था वो बहुत ही अच्छा होता था। बट फिर भी केबल टीवी ऑपरेटर जब दूरदर्शन को उस बैंडविड्थ पे चलाता था जिसमें जब उसके सिग्नल्स हमारे घरों तक पहुंचता था तो उसके क्वालिटी बहुत खराब हो जाते थे। फिर सरकार को नियम लाना पड़ा कि इसको प्राइम बैंडविड्थ पे चलाना पड़ा। तो आप देखिए कि वहां पे बीच में एक मिडिलमैन बैठा है जो आपके कंटेंट को वो रेगुलेट कर रहा था, आप क्या देखेंगे। कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि आप, क्योंकि पुराने टाइम पे हम लोग चैनल को जो है हम सिलेक्ट करके रखते थे कि चैनल 1 में ये चैनल रहेगा, चैनल 2 में इस चैनल को हम देखना पसंद करेंगे। और अचानक ऐसा होता था कोई एक नया चैनल आता था तो जो केबल ऑपरेटर होता था वो उसकी बैंडविड्थ को बदल देता था। अगर हमें एक्स चैनल हम रेगुलरली चैनल 2 पे देखते थे तो अचानक से एक दिन ऐसा होता था कि वो चैनल 2 पे कोई दूसरा चैनल आ रहा है। तो इट मीन्स वहां पे एक मिडिलमैन बैठा हुआ था जो इस चीजों को रेगुलेट कर रहा था। बट जब से ये ओटीटी स्ट्रीमिंग आया है तो मुझे लगता है कि हम जो दर्शक जो हैं, जो हमेशा चाहता था कि वो किंग था, किंग रहेगा और वो ये किसी के इंटरफेरेंस इसमें वो नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने वो ऑप्शंस ऑडियंस को दे दिए हैं कि वो एंजॉय कर सकता है हाई वैल्यू कंटेंट को और दैट टू लो कॉस्ट में। आज अगर कॉस्ट भी देखेंगे तो बहुत कम होगा। एंड इवन इफ मैं अपना पर्सनल एग्जांपल, और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों का मैं एग्जांपल देख रहा हूं, घरों में जो अफोर्ड कर सकते हैं तो हो सकता है कि वही लोग शायद केबल का भी सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं और उसके साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं। बट बड़े सारे लोग जो हैं, मेरे जानने वाले में जिनसे भी मैं बात करता हूं, तो ये एक शोध का भी विषय है, तो वो लोग धीरे धीरे केबल सब्सक्रिप्शन से हट रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप आज देखेंगे तो चाहे वो डायरेक्ट टू होम डीटीएच, डिश डीटीएच हो या टाटा स्काई हो, वो भी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म को उनके साथ इंटीग्रेट करने लग गए हैं और ये इंटीग्रेशन हो गया है। और घरों में जब से स्मार्ट टीवी आया है तो तब से जो है आप कभी भी किसी भी मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, अपने पसंद के हिसाब से जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड और एक वो है कि एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, मल्टीपल डिवाइस पे देखिए, 4-5 किसी एक ने सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके सब्सक्रिप्शन पे जो है हम 4-5 लोग जो है कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ भी देख सकते हैं। और उसमें वो हम मतलब यहाँ पे हालांकि वो एक जो है डिबेट का सब्जेक्ट है कि क्या इनके कंटेंट को रेगुलेट किया जाए या ना किया जाए। बट जब हम जो लोग एडवोकेट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो हमारे पास है कि मैं जिम्मेदार नागरिक हूं, मेरे को कोई दूसरा नहीं चाहिए कि वो मेरे लिए कंटेंट डिसाइड करे, मैं खुद अपना कंटेंट जो है मैं डिसाइड कर सकता हूं। तो एक सेल्फ रेगुलेशन, इन सब विषयों का जो है आगे को कभी भी इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो सकता है। बट जो मैं किंग हूं और मैं अपना जो भी कंटेंट मैं देखना चाहूंगा वो मैं ओटीटी पे देख पा रहा हूं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई मिनिस्ट्री का कहीं पे भी कोई सेंसर बोर्ड का किसी का उसमें रोक टोक नहीं है। तो कोई भी चीज आई कैन वॉच एनीथिंग, मैं अपने हिसाब से जो है इस प्रोग्राम को देख सकता हूं।
और मेरे हिसाब से अगर हम इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में अगर बात करेंगे, इसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, तो मार्केट एक्सपांड कर रहा है और ये जो मार्केट है ये एक्सपांड करता रहेगा। और ऐसा दिन आएगा शायद ये हमारे लिए एक वायबल ऑप्शंस रह जाएगा, एंड इवन इफ एडवर्टाइजर्स के लिए भी एक वायबल ऑप्शंस रह जाएगा। धीरे धीरे हो सकता है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि बदलाव होना जरूरी है, और बदलाव होता आया है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि पुराने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो अभी भी है, वो भी रहेंगे। मैं इससे ये इनकार नहीं कर रहा कि उनकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो। इसी तरीके का जो ओटीटी है ये एक नया ऑप्शंस हमारे पास लेके आया है। तो इसका जो मार्केट है इट विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड, एंड धीरे धीरे अभी हम देख रहे हैं कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये और बड़ा होने जा रहा है। आप देखिए आईपीएल से लेके इतने सारे जो स्पोर्ट्स और इन सब चीजों का जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, और इसमें दिन ब दिन जो है काफी इसमें इजाफा हो रहा है। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम बात करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये भी इस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, ओटीटी इंडस्ट्री को काफी इम्पैक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम अब देखेंगे तो इसमें एक हाइपर पर्सनल अप्रोच आ गया है। मैं क्या देखूंगा, क्या मेरे पसंद के हिसाब से उसी तरीके के कंटेंट, क्योंकि कंटेंट की भरमार है, डेल्यूज ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन डेल्यूज है, बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति है। बट ये जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेरे पर्सनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली मेरे को कंटेंट जो है सजेस्ट करेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एआई जो है वो आगे को काफी बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, और धीरे धीरे ये कर भी रहा है। और एआई के जरिए तो आजकल छोटे छोटे वीडियोज, टीजर्स ये सब बनने लगे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को यूज किया जा रहा है इन सब टीजर को बनाने के लिए, जिसमें मुझे लगता है आगे को सप्तर्षि इसके ऊपर ज्यादा रोशनी इसके ऊपर डालेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो बदलाव का दौर चल रहा है, और भविष्य में यही एक मेजर प्लेटफॉर्म बना रहेगा। और ये देखिए काफी लोगों को जो है ये रोजगार का मौका भी दे रहा है। हम अपना कंटेंट, जैसे वो शुरू में जब मैं आया था तो जब हम प्रोज्यूमर के बारे में बात कर रहे थे तो प्रोज्यूमर को हम बोलते थे कि जो प्रोफेशनल कैमरा और कंज्यूमर कैमरा, तो ये मिलके प्रोज्यूमर कैमरा आया। बट अभी प्रोज्यूमर का मतलब हो गया है कि जो कंज्यूमर है वही खुद प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर बनके ये प्रोज्यूमर हो गया है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का जो है इसमें काफी अहम रोल रहेगा। एंड दो शब्द मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक है कॉर्ड कटर्स, CORD, कॉर्ड कटर्स, और एक है कॉर्ड नेबर्स। ये दो नया इमर्जिंग लाइक टर्म्स ओटीटी के संदर्भ में हम लोग यूज कर रहे हैं। जो कॉर्ड कटर्स हैं वो ऐसे जेनरेशन से, ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे जैसे, किसी ना किसी वक्त पे हम लोग जो है ट्रेडिशनल केबल प्लान पे थे एंड हमने उसके लिए पेमेंट की है, और आज हम जो है वी हैव कट द कॉर्ड एंड वी हैव अबैंडन्ड दैट दोज केबल प्लान्स, और हम लोग जो है ये नए स्ट्रीमिंग सर्विसेज और इंटरनेट बेस्ड जो केबल ऑल्टरनेटिव है इनके ऊपर आए हैं। तो इनको कहा जाता है कॉर्ड कटर्स, और एक है कॉर्ड नेबर्स। ये जो कॉर्ड नेबर्स, ये जो यंग जनरेशन है, जो यंग मिलेनियल्स हैं, ये कॉर्ड नेबर्स हैं जिन्होंने they have never paid for a cable subscription or cable plan. So directly ये जो younger people हैं, ये इनकी जो रुझान जो है that is towards streaming services for their entertainment needs, और वो उनको हम कॉर्ड नेबर्स कह रहे हैं, और इनका एक अहम रोल रहेगा ये इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को भविष्य का मनोरंजन बनाने के लिए। कहीं पे कभी भी हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन सब जगहों पे जो है हम इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आपने डिजिटल ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए यह भी एक तरह से प्रेडिक्शन किया है कि आने वाले टाइम में जो डिजिटल डिवाइड और इनइक्वलिटी की बात की जाती है उसको शायद हम खत्म कर पाएंगे। आपने दुनिया भर के आंकड़े दे करके जिस तरह से बताया कि जो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे कितने घंटे हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, हमारा जो जीवन लगता है पूरा उसमें घुल मिल गया है और हिंदुस्तानी दर्शक भी उसके साथ कदम ताल कर रहा है। ये बात सही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हमारे सामने विकल्प दिए हैं, लेकिन आपने दर्शक को किंग बताया, ऑडियंस इज द किंग। अब तक तो हम कंटेंट इज द किंग कहा करते थे, तो अब कंटेंट और ऑडियंस दोनों यदि एक तरह से उस उच्च स्थान पर आ गए, दर्शकों का प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे कंटेंट को, तो जो कंटेंट राइटर्स हैं जो इन माध्यमों से जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से वो भी और अधिक प्रभावित होंगे और कुछ अच्छा दे पाएंगे। ये सही है, इन प्लेटफॉर्म्स ने वीडियो ऑन डिमांड, वीडियो ऑन म्यूजिक, एक नया संसार हमारे सामने रच दिया है और हर नई तकनीक नई संभावनाएं लेकर के आती है, नई चुनौतियां लेकर के आती हैं। तो आपने उन सारी संभावनाओं को जिस तरीके से व्यक्त किया और जैसा मैंने कहा कि इन सारे मुद्दों और प्रश्नों पर हम एक उस व्यक्ति के विचार सुनते हैं जो स्वयं अंदर रह के इन सारी चीजों को बहुत निकटता से देख रहा है, महसूस कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, आगे क्या संभावनाएं लगती हैं। हम उस बाहरी दुनिया और दर्शकों के रूप में देखते हैं, लेकिन स्वयं अंदर रह करके वो किस तरह की चुनौतियों को महसूस कर रहे हैं। तो हम सप्तर्षि मजूमदार को सुनेंगे। जैसा मैंने आपसे बताया कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई और उसके बाद इस समय आप कोलकाता में हैं और वहां लगभग 20-25 से अधिक वेब सीरीज आप बना चुके हैं। और सबसे एक जो इनके व्यक्तित्व की विशिष्ट बात है, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला तीनों भाषाओं में आप समान अधिकार से काम कर रहे हैं और अलग अलग जो उसके फॉर्मेट हैं, आपने स्क्रीन प्ले राइटिंग का भी काम किया, आपने डायरेक्शन का भी काम किया, आपने प्रोडक्शन का भी काम किया। तो ये जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व आपके उसमें समाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत गहराई के साथ समझने में उनका वक्तव्य हमको सहयोग देगा। और जितने भी हमारे बड़े बड़े पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप सोनी लिव की बात करते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ब्रांड स्टूडियो की बात करते हैं, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की बात करते हैं, Z5 की बात करते हैं, अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव है, तो आपने उस वैविध्य को एक तरह से बहुत निकटता से आप देख रहे हैं। मैं उन सीरीज के नाम तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया और उसके पहले आप PR कंपनीज के साथ जुड़े रहे, कंटेंट राइटिंग का आपने काम किया, फ्रीलांसर के रूप में आपने काम किया और देश विदेश में जो आपका अनुभव रहा, मुझे लगता है कि आपका वक्तव्य हमें इस विषय को और अधिक गहराई से समझने में मदद देगा। मैं आमंत्रित करता हूँ सप्तर्षि मजूमदार जी को कि वे अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। सप्तर्षि जी। थैंक यू धन्यवाद सर, थैंक यू पांड्या सर। अच्छा, मैं शुरू में एक ही चीज बोलूंगा कि वो अभी पांड्या सर एक चीज के बारे में बात कर रहे थे, वो है कि लर्निंग प्रोसेस। सो मेरा भी अभी भी लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है और सिमिलरली OTT के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि OTT इज ऑल्सो लर्निंग। मतलब दो चीज अगर देखते, एक है कि हम लोगों का मतलब अगर भविष्य की एंटरटेनमेंट का जो मेन स्पेस है वो OTT ले रहा है, तो उसके मेजर 2-3 फैक्टर्स हैं। जैसे हम लोगों के लिए जो हो रहा है कि मतलब ये जो ह्यूमन बिहेवियर्स है, दैट इज प्राइमरीली डिसाइडिंग कि हम लोग का कंटेंट क्या बन रहा है, क्या बनेगा आगे जाके। क्योंकि पहले जैसे होता था कि कोई फिल्म अगर हॉल पे चल रही है या फिर कोई टेलीविजन में कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसका रेटिंग सिस्टम जो भी जैसा होता था या फिर हॉल के टिकट्स जितने बिकते थे उसके ऊपर हम लोगों को लगता था कि यार यही मतलब ऐसे वाले कंटेंट ही लोग ज्यादा देखेंगे, ऐसे वाले कंटेंट ही लोग ज्यादा मतलब ऐसी वाली कंटेंट ज्यादा बिजनेस करेंगे हमारे लिए। वो चीज अभी मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद वो चीज काफी हद तक डाइल्यूट हो चुकी है, क्योंकि मैं वही देखता हूँ जो मुझे पसंद आता है और मैं वही ढूंढता हूँ जो मुझे चाहिए दिखने के लिए। तो और ये OTT जो प्लेटफॉर्म में जाके मैं जो कर रहा हूँ, ये मेरी सारी एक्टिविटीज ये OTT प्लेटफॉर्म ट्रैक करती रहती है। मान लीजिए कि मैंने किसी फिल्म में शाहरुख खान को 5 बार, मैंने 1 महीने में शाहरुख खान की 5 फिल्में देखी है और उसी महीने मैंने सलमान खान की एक भी नहीं देखी और 2 बंगाली फिल्म देखी है।
तो आगे जाके क्या करेगा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये वही उसी के हिसाब से अपने वो सजेशंस देता रहेगा मेरे को कि आपको ये चीजें पसंद है तो आपको शायद ये भी चीजें पसंद आ सकती है, अब क्यों ना ये ट्राई करें। जैसे अब होटल वगैरह में जाते, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते, जब हम लोग पूछते हैं कि मतलब सजेस्ट कीजिए क्या खा सकते हैं, तो वो अगर जान पहचान वाला हुआ होता है रेस्टोरेंट अपना, तो वेटर आके बोलते हैं सर आपको ये पसंद है तो आप ये वाला ट्राई करके देख सकते हैं, ये हमारे पास नया है या फिर इसके साथ आसपास वाला हिसाब है। तो दैट इज प्राइमरीली अ प्राइमरी फैक्टर, मतलब हम लोग का ह्यूमन बिहेवियर, वी आर स्टिल लर्निंग, ओटीटी इज आल्सो लर्निंग विद अस, और उसी के हिसाब से हम लोगों का कंटेंट भी डिसाइड हो रहा है। वो डिसाइड करने वाले प्लेटफॉर्म के हेड्स है, उनके पास डेटा वगैरह सब कुछ होती है। दूसरी चीज है कि इट्स बेसिकली अब ओटीटी के लिए बूमिंग पीरियड तो है ही, ओटीटी मतलब एंटरटेनमेंट का फ्यूचर ही ओटीटी है, ये हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा भी जो मतलब फ्यूचर जो जिसके लिए ओटीटी स्पेस से सबसे बड़ा फ्यूचर था, गोल्डन पीरियड जो खोल दिया है, वो है राइटर्स के लिए। बिना राइटर्स के कोई कंटेंट नहीं बनती है। राइटर्स ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन द बैक बर्नर ऑफ ऑल द एंटरटेनमेंट शोज, अब से मतलब आज से पहले तक। लेकिन पिछले 5-7 सालों में दिस स्केप हैज कम्प्लीटली चेंज। मैं यूएस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे वो बहुत पहले से प्रोफेशनली राइटर्स को मतलब वो स्पेस दिया जाता था जो कि इंडिया में नहीं मिलता था। तो यहाँ पे ओटीटी ने ये मतलब ओटीटी कंटेंट ने ये स्पेस हम लोगों के लिए काफ़ी खोल दिया है। सो अगर मतलब मेरा यही मानना है कि अगर मतलब मान लीजिए कि हम लोग स्टूडेंट्स वगैरह को समझा रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ा भी रहे हैं कुछ, या फिर कोर्सेज भी करवा रहे हैं, तो आइडियली हम लोग के सिस्टम में ऐसा मतलब ये राइटिंग कैसे करते हैं, नॉट फॉर ओटीटी, बेसिक राइटिंग कैसे करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, मतलब एक स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि कॉलेज से निकल के ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए जा रहा है, तो उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं जो उसने सीखी है, लेकिन जो बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए वो है राइटिंग। ये राइटिंग का अगर उसमें मतलब इफ ही नोज हाउ टू राइट थिंग्स, इफ ही नोज ही कैन इमेजिन एंड राइट थिंग्स इन हिज ओन वर्ड्स, और कहानी लिखने का अनुभव है, कहानी बनाने का अनुभव है, आइडिया निकालने का अनुभव है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टाइम पे। बिकॉज हर जगह पे जो क्रंच मचा हुआ है, वो क्रंच मचा हुआ है राइटर्स के लिए ही, आइडियाज़ और राइटर्स के लिए क्रंच मचा हुआ है। जो हम लोग अभी कंटेंट देखते भी ना, काफ़ी कंटेंट आप देखेंगे मतलब इंडिया में जो भी बन रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर स्केप पे काफ़ी चीज़ें बन रही हैं। उसका एक मेजर कारण यही है कि एक तो है कि हाँ मतलब प्लेटफॉर्म को लग रहा है कि मेरा ऐसा कंटेंट हिट गया है तो मेरा ऐसा कंटेंट ही हिट होगा, वो एक है। दूसरा है कि हम लोगों के पास लिखने के लिए काफ़ी अच्छे लोग नहीं हैं। एंड मतलब ये मान लीजिए, मतलब मैं पिछले 3-4 सालों से यही सुनता आ रहा हूँ कि राइटर्स की कमी है बॉम्बे में, राइटर्स की कमी है बॉम्बे में, कलकत्ता में भी वही है, कलकत्ता में तो और भी कमी है। अच्छे राइटर्स मतलब गुड राइटर्स आर दी बेसिकली फ्यूचर फॉर ओटीटी। मतलब उनको मतलब पहले से वही दिमाग में रखना चाहिए, मतलब इवन इज लर्निंग मास कॉम और इज लर्निंग फिल्म स्टडीज और इज लर्निंग एनीथिंग, राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। वो बिना राइटिंग के कुछ भी नहीं होगा। सो मतलब ये बेसिक चीज है बिल्कुल, तो बिना राइटिंग का कुछ भी नहीं चल सकता। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पिच करने जा रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं कंटेंट पिच करने जा रहा हूँ। नेटफ्लिक्स अमेजन में तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं इस पिचिंग प्रोसेस के, और उससे नीचे वाले जो भी मतलब उसके नीचे जो जितने सेकेंड लेवल ऑफ हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे भी आजकल ये पूरा फॉर्मेट शुरू हो गया, यू हैव टू क्रिएट अ पिच बाइबल। ये पिच बाइबल में बेसिकली क्या होता है, पिच बाइबल में हम लोगों को पूरी कहानी बतानी पड़ती है, पूरे कैरेक्टर्स बताने पड़ते हैं, कैरेक्टर्स का स्केप क्या रहेगा वो बताना पड़ता है, एक सीरीज के शुरू से लेके आखिरी तक में क्या क्या होने जा रहा है वो बताना पड़ता है, हर एपिसोड में क्या होने जा रहा है वो बताना पड़ता है, हर एपिसोड के एंड में क्या हुक पॉइंट बन रहा है वो बताना पड़ता है। और अगले आने वाले सीजन के बारे में अगर हम सोच भी रहे हैं तो 2-3 सीजन का हम लोगों को ग्लिम्पसेस देना पड़ता है, क्योंकि आजकल कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सिंगल सीजन पे ध्यान नहीं दे रही है ज़्यादा। बिकॉज एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी ये सही है, एक प्रोडक्शन हाउस के लिए भी सही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू दैट अ कंपनी अर्न्स आर थ्रू द सेकेंड और थर्ड सीजन ऑफ द शो। तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है पिच बाइबल में सारा कुछ मतलब सारा कुछ लिखना पड़ता है। और
दूसरी चीज़ है कि पहले हम लोगों को लगता है कि यार 2 पेज का एक समरी बना लिया, हम लोग चले गए दिखाने के लिए, उसमें काम हो जाएगा। उसमें काम नहीं होता है। वो जैसे ही वो 2 पेज की समरी देखेंगे, वो तभी के तभी बोलेंगे कि मुझे आप लोग इनका एपिसोडिक बताइए कि हर एपिसोड में क्या हो रहा है, व्हिच इज़ बेसिकली मिनिमम ऑफ 30 टू 40 पेजेस ऑफ राइटिंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राइटिंग इज़ द सोल ऑफ ओटीटी। राइटिंग शुड बी द सोल ऑफ ऑल द एंटरटेनमेंट फॉर्म्स, बट ओटीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 चीज़ें और है जो भी मतलब अभी जो मतलब द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द ओटीटी मार्केट। जैसे हम लोग इंडिया में तो अभी भी हम ओटीटी स्पेस की बात किए जा रहे हैं, लेकिन यूएस में जो ऑलरेडी दे हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल बेसिकली, वहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेस्टीज टीवी। प्रेस्टीज टीवी इज बेसिकली आपकी ओटीटी कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म में ही जो भी प्रेस्टिजियस शोज है या फिर जो भी हाई वैल्यू शोज है, ठीक है, उनके लिए अलग से कैटेगरी बनाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मतलब अगर नेटफ्लिक्स इंडिया में सेक्रेट गेम्स हिट हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड प्रेस्टीज टीवी कंटेंट। तो वो अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही जल्दी ये भी आ जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि जैसे टेलीविजन में फ्रेगमेंटेशन हो गया था थोड़े दिनों के बाद से, केबल टीवी आने के बाद से, द सेम थिंग इज हैपनिंग ऑन ओटीटी आल्सो, आई मीन विल हैपन इन ओटीटी आल्सो। जैसे आप अगर अमेजन प्राइम की सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं कि नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड चैनल्स इन द अमेजन प्राइम, जिसमें आपने अमेजन प्राइम का एक बेसिक सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद दे विल ऑफर यू लाइक 10 मोर चैनल्स, जिसका आप अलग अलग से इंडिविजुअली आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मतलब काफी हद तक ये टेलीविजन चैनल्स का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। किस मतलब अब कंटेंट की फॉर्मेटिंग के मैं लिए बात कर रहा हूँ, इसमें भी बेसिक आइडिया कि टेलीविजन का ही है इनका। जैसे हर एपिसोड के एंड में ये हुक पॉइंट होना जरूरी है, हर एपिसोड में एक लेंथ फॉलो करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सो ऑल दिस हैज कम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम टेलीविजन। मगर फर्क क्या है, टेलीविजन में एक सीरियल हम लोग 300 400 500 एपिसोड देखते हैं, वहाँ पे हमारे पास होता है कि एक सीजन में 10 एपिसोड, वो 10 एपिसोड में हम लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन द वे वी डिवाइड इट इज द सेम वे वी यूज्ड टू डिवाइड फॉर टेलीविजन ओनली। लेकिन यहाँ पे कंटेंट के लिए हम लोग के स्पेस ज़्यादा है, कंटेंट आइडियाज के लिए स्पेस ज़्यादा है, तो कंटेंट दूसरे तरीके के कंटेंट्स बन रहे हैं। सो ये बिहेवियरल साइड है बेसिकली हम लोगों के लिए। अब मैं ये कहूँगा कि मतलब जैसे अभी बात चल रही थी कि मतलब फिल्म हॉल्स वगैरह के बारे में, देखिए उसके बारे में तो अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि फिल्म हॉल्स बंद हो जाएंगे क्या, या फिल्म हॉल्स मतलब चालू रहेंगी। बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट का मजा अलग है, वो तो रहेगा ही, जो कि हम लोग ने देखा भी काफी हद तक। ये क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह जब होता है, वो भी काफी हद तक हम लोगों ने देखा कि किसी सिनेमा हॉल में ही वो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होता है। सो वो बिग स्क्रीन का मजा तो रहेगा, मेरे हिसाब से बिग स्क्रीन का मजा तो रहेगा। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये है कि ये मतलब फिल्म्स के बिकने के लिए एक और स्पेस बन गया हमारे लिए ओटीटी। बिकॉज एक फिल्म को बिजनेस अच्छी तरह से करना, स्पेशली इन द रीजनल मार्केट, हम लोग के पास हॉल्स उतनी ज़्यादा नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑलरेडी क्राउडेड विद द हिंदी एंड इंग्लिश फीचर फिल्म्स ऑलवेज। अब जो हुआ है कि देयर इज अ बिग रेवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड ऑल ओवर साउथर्न इंडिया ऑन कंटेंट, जिसका इफेक्ट हम लोग के रीजनल सिनेमा हॉल्स में भी आ चुका है, जिसका हम इम्पैक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी देख रहे हैं। बिकॉज अगर हम मतलब नाउ पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट्स द नेक्स्ट मलयालम फिल्म दैट्स कमिंग इन अमेजन, ठीक है, उसके लिए बैठे रहते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों के चक्कर में आके क्या होता है, जैसे कंटेंट्स लाइक अ बंगाली फिल्म, एक तो होता है कि हम लोग का बजट कम होता है, देन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आल्सो गोज इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ द फिल्म। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ह्यूज फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को इतनी जल्दी मिलती नहीं है, इतने हॉल्स में मिलते नहीं आराम से, क्योंकि उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। उसकी जगह पे हम लोग को ओटीटी प्लेटफॉर्म एक और स्पेस दे दिया जहाँ पे हम लोग फिल्म को बेच सकते हैं, एंड वी कैन डू इट ऑन अ परपेचुइटी बेसिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी फिल्म सोनी लिव को दे दी 5 साल के लिए, सो दे विल क्रैक अ डील विद मी कि आपको 5 साल तक इतना पैसा मिल जाएगा। इज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वो फिल्म की राइट्स वापस मेरे पास आ जाती है, देन आई कैन सेल इट ऑफ टू सम अदर ओटीटी प्लेयर एज वेल। तो ये सब चीज़ों में काफ़ी हद तक फिल्म को भी हेल्प मिला है। और आजकल तो जैसे मतलब डायरेक्ट टू ओटीटी तो रिलीजेस हो ही रही है, वो तो मतलब दैट्स अ गिवन थिंग। मगर आज आप लोगों ने देखा होगा जैसे मतलब ऐसे भी हो रही है कि जहाँ पे हॉल में रिलीजेस और ओटीटी में रिलीजेस एक साथ हो रही है फिल्म में।
So these are like marketing strategies, how you basically distribute your films and all. तो मेरे हिसाब से मेरा जितना काम का जितना भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, उसके हिसाब से मेरे को लगता यही है कि एक तो है कि फ्यूचर जनरेशन ऑफ राइटर्स शुड बी रेडी. सिर्फ वी कैन नॉट फोकस ऑन ऑल द थिंग्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लिव आउट राइटिंग इन द प्रोसेस. और वो सिर्फ आर्ट्स ग्रेजुएट या फिर मान लीजिए जिसने इंग्लिश में पढ़ाई किया, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उन्हीं के लिए it will only be restricted to them. It's not that. This should become a curriculum of all the universities, like writing, because writing is going to generate a lot of employment for the next at least 20-30 years. दूसरा है कि people have to accept making content according to the data. Data मतलब अगर OTT प्लेटफॉर्म अगर आपको आके बोलती है कि मेरा थ्रिलर चाहिए, मेरे को थ्रिलर ही चाहिए, और जो थ्रिलर मान लीजिए कि इस टारगेट ग्रुप मेरा ऑडियंस ये है और उसमें मेरे को ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी होना चाहिए. When a OTT platform is saying all those things, that means they have the data कि उनके पास ये थ्रिलर ऐसी फिल्म है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया है, उसका इतना रीच ज़्यादा है, उसका बिजनेस इतना बड़ा है. So these are the constraints. लेकिन मेरे को लगता है कि दिस constraints should be taken into consideration, because तभी जाके आपका एंटरटेनमेंट, आपका जो कंटेंट है वो बिकेगा आराम से. और वो आपका कंटेंट बिकेगा तो आप एसेंशियली वी मेक कंटेंट टू आई मीन बेचने के लिए बनाते हैं हम, तो बना के रखने के लिए नहीं बनाते हैं. At the end of the day, it will generate employment. At the end of the day, it will give you new spaces. At the end of the day, it will give us new scope also. तो ये OTT का एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी विद डेटा मान के चलना पड़ेगा. और ये ऐसा भी नहीं है कि जैसे टीवी में होता है कि आपका जो बार्क सिस्टम है या फिर ऐसा कुछ है, उसके हिसाब से यू डोंट हैव द कंट्रोल ओवर द डेटा, क्योंकि वो टेलीविजन सेट में जिसमें लगा के गया है मशीन, वो कोई भी देख सकता है बैठ के, एंड देयर कैन बी लॉट ऑफ फजिंग दैट कैन हैपन. मैं जब कोई कंटेंट देख रहा हूँ तो नेटफ्लिक्स के पास मेरा आईडी है, उसे पता है कौन देख रहा है कंटेंट, उसका एज क्या है, और वो शाम को 8 बजे ये चीज़ देखने में देखता है, और वो अगर रात को 12 बजे कोई अगर वो देखना चाहता है तो वो ऐसी कंटेंट देखता है. वो सर्दी के मौसम में रजाई के अंदर घुस के ये वाला कंटेंट देखना पसंद करता है, और ये गाड़ी में चलते चलते ड्राइविंग ट्रैवल करते करते ये वाला कंटेंट देखता है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर बेसिकली क्या कहेंगे विच एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्या बनाए. सो इट्स नॉट दैट जस्ट कि ऐसा नहीं है जैसे बॉम्बे में जो भी आई थिंक आप सबको पता है कि नेटफ्लिक्स हैज सीन अ लॉट ऑफ setback in terms of good content, in terms of business in the last few years in India. तो उसका चक्कर यही है कि नेटफ्लिक्स ने ज़्यादा फोकस बॉलीवुड पे कर दिया और अमेजन और हॉटस्टार ने कंटेंट पे कर दिया और ऑडियंस पे फोकस ज़्यादा किया है. नेटफ्लिक्स को लगा कि नहीं, वो जो लोग शाहरुख खान की फिल्म देखते हैं मैं उनके लिए शाहरुख खान की फिल्म बना के बेचूंगा तो वो लोग ज़्यादा देखेंगे. अमेजन को लगा कि मेरे ऐसे वाले कंटेंट देखने के लिए लोग आ सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं. जैसे most of the independent films which I'm talking about, like Malayali films and all the Tamil, Telugu films, that the Marathi films, the revolutions are happening, वो कंटेंट की वजह से ही हो रहा है. और वो अमेजन या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देखा है कि उस कंटेंट का मेरे पास ऑडियंस है एंड आई कैन मेक मनी थ्रू दैट कंटेंट बेसिकली. तो दिस आर ऑल द डिसाइडिंग फैक्टर्स बेसिकली. मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो कर सकता है. आई विल बी एबल टू बेटर frame my answers then. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सप्तर्षि जी. आपने OTT की वो जो अंदरूनी चुनौतियां हैं, संभावनाएं हैं, उनका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण विवेचन किया कि किस तरह से नए लेखकों के लिए OTT की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि वो अपना कंटेंट तैयार करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा अवसर वहां पर हो सकता है, और किस तरह से तकनीक ने ये सुविधा दे दी है कि व्यक्ति की अभिरुचियों का वो शोध, जिसकी बात शायद राजीव जी ने कही थी, कृत्रिम बौद्धिकता की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, तो उसके माध्यम से, ये तो हमारा बहुत छोटा सा अनुभव है कि इस YouTube चैनल पे हमारे यहाँ हर महीने में वो YouTube वाले भेज देते हैं कि इतने मिनट आपका ये चैनल देखा गया, इतने नए सब्सक्राइबर बने, इतने कमेंट्स हुए. तो ये तो बहुत एक प्रारंभिक स्टेज पे है, लेकिन जब इतना बड़ा तंत्र हमने विकसित किया है तो उसके लिए लोगों की अभिरुचियां,
उनका देखने का समय, उसके साथ बहुत सारी जो और प्रश्न जुड़े हुए हैं, इनका वो ऑटोमेटिक एक तरह से उनके पास फीडबैक आ जाता है। जहां हम किसी दौर में टीआरपी की विश्वसनीयता के सामने प्रश्न चिन्ह लगाते थे, लेकिन तकनीक ने वो सारी चीजें सुलभ कर दी हैं। और किस तरह से हम ओटीटी से प्रेस्टीज टीवी और अभी तो 6G 7G के दौर में जब पहुंचेंगे तो पता नहीं कितनी तरह के नए साधन आ जाएंगे। तो इन सब के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना है कि आने वाला दौर नई संभावनाओं का दौर है, उसके साथ नई चुनौतियों का दौर भी रहेगा। और जैसा आपने कहा कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सिनेमा खत्म हो जाएंगे, मेरे ख्याल ये सवाल एक बार हमने एक वेबिनार भी किया था इसी पे। जिस तरह से डिजिटल एडिशन समाचार पत्रों के आने लगे, तब ये सवाल उठा, विल प्रिंट मीडिया सर्वाइव? क्या मुद्रित माध्यम जीवित रहेंगे? मुझे लगता है फिर एक चुनौती है। तो यही स्थिति यहाँ है। जब शायद टेलीविजन पर क्रिकेट मैच लाइव दिखाने लग गए थे, तब भी सवाल उठा था कि दर्शकों में मैदान पर दर्शक आएंगे कि नहीं आएंगे। आज भी दर्शक भरे रहते हैं, आज भी उसी तरह से हुटिंग हो रही है ना। हमने तो वो दौर देखा जब ट्रांजिस्टर लेकर के खेल के मैदानों में जाते थे। वो दौर तो अब चूंकि सुरक्षा के बहुत सारे जो चुनौतियां हैं उसमें ये बंद कर दिया, लेकिन वो बार बार कमेंटेटर कहते थे कि ट्रांजिस्टर की आवाज को धीरे रखिए, ये कीजिए, सब इस तरह से। तो हर माध्यम, जो राजीव जी ने कहा कि हर माध्यम किसी न किसी रूप में अपने अस्तित्व को बनाएगा। रेडियो एक बार बंद हो गया, फिर वापस रिवाइव हुआ, फिर नई उसमें एफएम टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, उसने रिवाइव किया। तो मुझे लगता है ये दौड़ चलती रहेगी। अंततः जो गुणवत्ता है वही उन माध्यमों को जीवंत और लोकप्रिय बनाएंगी। अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। मैं जो देख पा रहा हूँ, हमारे साथ 2 एक्सपर्ट है, राजीव जी और सप्तर्षि जी। शायद श्याम जी और मुकुल जी अभी यहाँ नहीं है, लेकिन कोई भी अपनी टिप्पणी रखना चाहे और कोई सवाल हमारे दोनों विशेषज्ञों से हो तो एक किसी हमारे मित्र ने हाथ खड़ा किया है, हैंड रेज का ऑप्शन है इसमें, लेकिन वो नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसमें तो NET प्रेप ये लिखा हुआ है, तो कुछ कहना चाहते हैं? सर ये मेरा है सर, साक्षी मेरा नाम है। मैं PhD कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। हाँ जी, और सर मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो यही है OTT आप अपना मीडिया। वीडियो ऑन इसलिए कर लीजिए ना, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो जी अच्छा जी रहेगा। हाँ हाँ जी जी सर बिल्कुल। हाँ हाँ हेलो हाँ जी, सर। हाँ जी। जी सर, तो मेरा ये टॉपिक ये है रिसर्च का, OTT मीडिया। जब मैंने आपका वेबिनार देखा इस पे तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत कम ही इस टॉपिक के बारे में लोग भी जानते हैं और वेबिनार वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका कि आपने इस आपके टॉपिक के सुपरवाइजर कौन ऊपर। है? बच्चा बाबू हैं, अर्चना जी यस हैं, सर, कौन है? डॉक्टर अच्छा, बच्चा बच्चा बाबू। बाबू, ओके। जी जी। ठीक तो है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने वेबिनार देखा और मैंने इसको ज्वाइन करने के लिए सोचा कि मैं इसको पक्का ज्वाइन करूंगी। और क्योंकि मैं इसके रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर राजीव जी से है। मैं सर से ये पूछना चाहूंगी कि सर आप जैसे सेल्फ रेगुलेशन के बारे में फिर बात कर रहे थे कि सेल्फ रेगुलेशन होता है इससे। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो ये सेल्फ रेगुलेशन कोड है, ये जो आपने हमें पता है कि OTT जो मीडियम है उस पे सेल्फ रेगुलेशन का आपके पास ऑप्शन है, मतलब सेल्फ रेगुलेट ही करते हैं अभी जो भी जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स है अपने आप को। बट जैसे कि आप मूवीज की बात करें, सिनेमा की बात करें, या फिर आप जो आपका टेलीविजन है उसको जो आप रेगुलेट करते हैं वो सिनेमाटोग्राफ एक्ट के थ्रू करते हैं या फिर आप CFBC के थ्रू करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इसमें एक डिस्पैरिटी है रेगुलेशन की, जो आपके जो ये अभी OTT मीडिया है इस पे? क्योंकि अब आपने देखा होगा कि अभी जो मूवीज हैं वो प्रेफर कर रही हैं कि वो OTT पे अपनी रिलीज करें, क्योंकि वहां पर उनको जो है कट्स नहीं लगाने पड़ते अपनी मूवीज में। जैसे कि आपको देखा होगा कि CFBC जो है वो सेंसर करता है मूवीज को, जहां पे भी उनको लगता है कि एक्सेसिव न्यूडिटी है या वल्गैरिटी है तो वो उसको सेंसर कर देता है। लेकिन जो OTT मीडिया है वहां पे आपको एक तरह से आपको एक ऑप्शन मिला है कि आपको सेंसर का मतलब आपको नो सेंसरशिप का ऑप्शन मिलता है। तो आप क्या मतलब आपके इसके ऊपर विचार हैं कि इसमें एक डिस्पैरिटी है, इम्बैलेंस है रेगुलेशंस का या नहीं? मैं यही पूछना चाहूंगी सर से। देखिए इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट है। देखिए जब आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो वहां पे आपका जो ऑडियंस है, सेट ऑफ ऑडियंस दे आर डिफरेंट, वो अलग वो है। जब आप ये एक आप ये कह सकते हैं कि ये एक पर्सनल मीडियम है। जैसे हम पहले रेडियो को टीवी को बोलते थे कि एक पर्सनल मीडियम है, तो उसी तरीके का जो OTT प्लेटफॉर्म है ये एक पर्सनल मीडियम है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप किसी न किसी तरीके से कंटेंट को
या जो हमारी जो इंटेलेक्ट है उसको जब आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं किसी दूसरे वे में जो है वो अपने कंटेंट को दर्शकों के सामने रखेंगे। तो देखिए मतलब इसमें ऐसा है कि जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, मेरा पर्सनल ये मानना है कि इसमें जैसे आईटी एक्ट के अकॉर्डिंगली और वहां पे जो हमारे मिनिस्टर हैं तो उन्होंने भी इसको बोले कि इस इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए। जैसे टेलीविजन चैनल्स वो अपने आप को भी सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, उनके लिए एक लॉ जो है वो भी फ्रेम किया गया है। तो ये वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट है, तो इसमें फिर ऐसा रहेगा, अगर आप सिनेमा हॉल में जाएंगे तो उसके जो डिस्पैरिटी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नियम में रहना पड़ेगा। जैसे हालांकि भानावत सर तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हम जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के बारे में बात करते हैं तो एक हाथ में हमें फ्रीडम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ उसमें रेगुलेशंस हमारे ऊपर, उस फ्रीडम के ऊपर जो है लगाया गया है। तो एक हाथ से हमें फ्रीडम दिया गया है तो दूसरे हाथ से जो है एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के नाम पे जो है। और मुझे लगता है कि जब लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोग जब जो है लिटरेट हो रहे हैं, तो अभी उस तरीके के हम ये लॉजिक नहीं दे सकते कि नहीं यार ये लोग खराब हो जाएंगे, क्योंकि देखिए वो उतना तो समझ सकते हैं ना चीजों को। और देखिए मान लीजिए कि मेरे घर में ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मेरे को एक ऑप्शन दिए हैं कि अगर मेरे घर में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए मैं अपने कंटेंट को लॉक कर सकता हूं, एक ऑप्शन मेरे पास है। तो एज ए पेरेंट तो मेरे को उस ऑप्शन को जो है एक्सरसाइज करना चाहिए। और आजकल जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं उसमें भी उसी तरीके के स्मार्ट चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन आ गया है, तो सेफ सर्च का ऑप्शन आ गया। जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो फिर क्यों हम एक जबरदस्ती जो है सेंसरशिप या इस तरीके के चीजों को जो है हम लेके आए। हालांकि आपने बिल्कुल सही, आपका प्रश्न है कि जब फिल्म, ठीक है, जब हम फिल्म के ऊपर जाएंगे अगर वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है हम उसको फॉलो करेंगे। जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रहे हैं, इसका जो नेचर है, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म की जो आइडेंटिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नेचर है वो डिफरेंट है। और मेरे हिसाब से अगर हम रूल्स रेगुलेशन ओवरऑल किसी एक को देख के हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे वो हाइपर कंटेंट सर्च जब एआई हमें उस तरीके के लेवल पे ले आया है तो हमें भी उसी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। जी जी जी, मुझे थैंक यू लगता सो है मच सर। राजीव जी एक बड़ी चुनौती यह है कि स्वतंत्रता और उच्छृंखलता, इन दो चीजों को भी मुझे लगता है कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो क्या अनुशासन है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ वेब सीरीज को लेकर के उन कलाकारों के खिलाफ केसेस दायर किए गए। तो हमारे यहाँ जो लॉज हैं, मान लीजिए किसी महिला के बारे में है तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट वो वहाँ लागू हो जाता है। डिफेमेशन की बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, तो कुछ प्रोविजंस तो इस तरह के हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब आप तो चूंकि शोध कर रहे हैं और सप्तर्षि जी क्योंकि सिस्टम के ही पार्ट हैं, तो केबल नेटवर्क जो एक्ट है उसके तहत अभी इनको संचालित होना पड़ता है। और प्रकारांतर से जो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट है 52 का, उसी के तहत ये सारी चीजें संचालित हो रही हैं। तो अभी तक बहुत उस तरह का विधिवत कानून, लेकिन यदि समस्याएं होती है, जैसे मैंने कहा कि मैंने कल ही पढ़ा कि जब, क्योंकि अब कल तक तो स्कूल में मोबाइल अलाउड ही नहीं थे, एक्शन होता था बच्चे के खिलाफ। कभी हमने कल्पना की थी कि वो स्कूल ही मोबाइल में समा जाएगा, यूनिवर्सिटी मोबाइल में आ जाएंगी। तो अब ये जो चेंज आया है उससे बच्चे एडिक्ट होने लगे हैं। इसलिए अब जो एक नया कॉन्सेप्ट आया, जैसा सप्तर्षि जी ने कहा था कि राइटिंग क्राफ्ट को हम हिस्सा बनाए कोर्सेज का, तो हम कहते हैं राइटिंग क्राफ्ट के साथ साथ मीडिया लिटरेसी की बात भी की जानी चाहिए, ताकि बच्चा उन मैसेजेस को ट्रांसलेट कर सकने में सक्षम हो, चाहे वो पेरेंटिंग लॉग के माध्यम से या और किसी माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जब चुनौतियां आएंगी, क्योंकि पीछे तो नहीं लौट सकते हमें सामना तो करना ही करना है। अब उसकी तैयारी क्या हो, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को के लिए कुछ गाइडलाइंस आई। कल तक आपकी न्यूज वेबसाइट रजिस्टर्ड नहीं होती थी, अब सरकार ने कहा कि आप केवल हमको एडिटोरियल टीम का सूचना भेज दी, जैसे अखबारों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भी आने वाले समय में, और इस तकनीक ने तो सेंसरशिप के सारे नियमों को लगभग समाप्त कर दिया है। आपके पास 50 तरह के ऑप्शन हैं जिनके माध्यम से सेंसर्ड चीजों को भी दिखा सकते हैं। तो किस तरह से न्यायपालिका दिशा में काम करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सप्तर्षि जी आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आपने जो सारी ये तैयार की है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो वो कानूनी प्रक्रिया किस रूप में आपको है
या स्वाधीनता देता है? सर मैंने अभी तक जितने चीजों में काम किया है उसमें तो वैसे भी प्रॉब्लम आई नहीं है करने की। और हमारी जो फिल्म्स जितने भी जहाँ पे मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर रहा हूँ या फिर प्रोड्यूसर के तौर पे रहा हूँ, वो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स में गई हैं वो सारी पहले थिएट्रिकल रिलीज थी। उसके लिए उसमें पहले से CBFC रेटिंग वगैरह होता ही था, तो उसमें तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत मेरे काम में आई नहीं। हाँ, लेकिन एक दूसरी दिक्कत आती है, शुरू में भी आई थी, ये मैं आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये लोकल OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ खुलने लगी थी। वैसे यहाँ पे कलकत्ता में देयर आर 2-3 बड़ी प्लेटफॉर्म्स which are working, like one is Hoichoi, one is Adda Times। तो Adda Times लॉन्च करने के टाइम पे एक्चुअली फर्स्ट द कंटेंट दैट दे लॉन्च्ड विद वाज माय शॉर्ट फिल्म दैट आई मेड फॉर देम। लेकिन वो तो नॉर्मल फिल्म थी, इट्स बेसिकली अ रोम कॉम। लेकिन उसके बाद उसके अगली बार जब वो एक प्रोजेक्ट खुद लेके आए मेरे पास करने के लिए, उसके बाद वो खुद एक प्रोजेक्ट लेके आए मेरे पास करने के लिए। कहानी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर था कि नहीं, इसमें ना थोड़ा मसाला होना चाहिए, थोड़ा इसमें कुछ दिखना चाहिए, थोड़ा इसमें ना सो दैट ऑडियंस गेट अट्रैक्टेड। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू माय सेंसिबिलिटीज आई ट्रीट इट। लेकिन उसके बाद आप जो मांग रहे हो मैं कर नहीं पाऊंगा, और वो कहानी के लिए जरूरी भी नहीं है। कहानी के लिए जरूरी है तो वो अलग बात है, लेकिन ये कहानी के लिए जरूरी नहीं है। तो आई रिफ्यूज, एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने वो बाद में आके फिर काम किया मेरे साथ। लेकिन कोई एक गाना था उसमें, गाने के शॉर्ट बेसिकली वो एक इट वाज अ वेरी ह्यूमरस थिंग कि दो बंदे थे जो कलकत्ता में कामकाज वाले बंदे रहते हैं, और उनके घर में अचानक से 60s की कैबरे डांसर की भूत आ जाती है बेसिकली। उसके बाद पूरा कॉमेडी था। तो उनको मैंने बोला था कि कैबरे सॉन्ग बनाते हैं, उसमें वो शूट करेंगे, और उन्होंने कैबरे सॉन्ग को आइटम सॉन्ग मान लिया। और उसके बाद जो भी हुआ कि मैंने किसी को सिलेक्ट किया था वो कोरियोग्राफ करने के लिए, हु नोज हाउ टू डू कैबरेज। उन्होंने उनको मना कर दिया। वो लेके आ गए लोकल किसी बंदे को जो यहाँ पे टिपिकल वो आइटम सॉन्ग टाइप के डांस वगैरह करवाते हैं। आई वाज कम्प्लीटली क्या हो रहा है यार। लेकिन उसके बाद कुछ बोल भी नहीं पाई, क्योंकि प्रोड्यूसर वहाँ पे सामने बैठ के कहे नहीं सर ये थोड़ा कर दो, ये थोड़ा कर दो। तो मैंने कहा आप कर दो, जो भी करना है, ये मेरा कंटेंट नहीं है, आपके लिए कर रहा हूँ, आपको करना है कर लो, बस सीधी बात है। उसके बाद नेवर वेंट बैक टू देम। उन्होंने बाद में बहुत बार मुझसे काम करने की कोशिश करवाई है, तो मैंने कहा सर ऐसे काम नहीं हो सकता मेरे से। इफ आई डोंट हैव अ बेसिक कंट्रोल ऑन माय कंटेंट, आई कांट वर्क। चलिए, और कोई मित्र कोई टिप्पणी करना चाहें, कोई जिज्ञासा? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। गोस्वामी जी परिचय भी दे दें, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। मैं प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, रीजनल डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जम्मू कैंपस। बड़ी अच्छी चर्चा रही, और आपको बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए कि आप हमेशा जैसे ऐसे समसामयिक विषयों पर, जो कि जिन पर प्रायः दूसरे जगहों पर चर्चा नहीं सुनने देखने को मिलती है, ऐसे विषयों पर चर्चा कराते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही। मेरे एक दो प्रश्न ये हैं कि एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे आज हम टेलीविज़न के लिए जो सबसे बड़ा संकट होता है, क्यों टेलीविज़न से ऑडियंस दूर हो गई, उसमें एक कारण मुझे लगता है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा विज्ञापन, और अभी OTT में विज्ञापन नहीं है। लेकिन मैं जितने भी यहाँ एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इसका रेवेन्यू मॉडल OTT का क्या है, और क्या आगे चल के इस बात की संभावना है कि OTT में भी विज्ञापन, जैसे हम देखते हैं पहले YouTube पे था, आपने अपना वीडियो डाला, कोई विज्ञापन नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे अब उसमें विज्ञापन आने लगे। तो क्या आप सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसी संभावना देखते हैं कि आने वाले समय में OTT पे भी विज्ञापन आने लग जाए? नंबर 1, क्योंकि मुझे अभी बहुत वाइबल रेवेन्यू मॉडल नहीं दिखता। अभी ऐसा लगता है कि पैसा सिर्फ पंप इन किया जा रहा है, उससे कितना रिकवर हो रहा है वो अभी बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात जो डॉक्टर पांडा ने कही कि टेलीविजन जो फिल्मों में CBFC का एक कैंची चलती है, और OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आज अभी तक स्वच्छंदता है, आप जो चाहें वो दिखा सकते हैं, और जो चाहें आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो इस दिशा में ये जो
2021 में इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आई थी, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें शुरुआत तो अभी उन्होंने इससे करी है कि आप सबसे पहले कैटेगराइजेशन कर दीजिए अपने कंटेंट का, और एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट कर दीजिए। तो क्या आप लोग ऐसा देखते हैं कि आने वाले समय में इन रूल्स में, क्योंकि ये रूल्स हैं, रूल्स में आगे भी बदलाव हो सकता है, तो इन रूल्स में कोई सीबीएफसी जैसा कोई एक एजेंसी आने की कोई संभावना आपको नजर आती है? धन्यवाद। देखिए, जब आप रेवेन्यू मॉडल की बात करते हैं, एक तो अभी भी आप अगर जैसे डिज्नी हॉटस्टार वगैरह में जाएंगे तो उसमें एडवर्टाइजमेंट बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, और एक कंप्लीटली अगर आप एड फ्री जाना चाहते हैं तो वो प्योरली सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड है उनका, कि आपने सब्सक्राइब किया, आपने 1000 रुपीज दे दी, तो उसमें जो है योर एंटरटेनमेंट विल बी कंप्लीटली एड फ्री। तो वो हो गया एक प्योरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड, और उसमें आपको कोई भी ऐड नहीं देखने को मिलेगा। एक एडवर्टाइजमेंट बेस्ड उनका बिजनेस मॉडल भी है। जैसे अगर आप 399 डिज्नी हॉटस्टार का अगर प्लान लेते हैं तो उसमें भी अगर आप कोई मूवी या कुछ भी प्रोग्राम देखते हैं तो बीच बीच में लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं इतना, और उसमें आपको पता लगता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए। टेलीविजन में क्या होता था कि आपको पता नहीं लगता था वो, हालांकि बाद में तो उन्होंने शुरू किए कि 2 मिनट, लेकिन फिर भी उसमें 5 मिनट चलता था, वो लास्ट के 2 मिनट में लिखेंगे कि 2 मिनट के बाद जो है उनका मेन प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये एक तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड उनका मॉडल हो गया, और एक उनका एडवर्टाइजमेंट बेस्ड इनका जो है मॉडल हो गया। तो ये 2 तरीके के जो मॉडल हैं ये अभी तक इनका चल रहा है। और बिल्कुल आप देखिए, कोई भी मीडियम जब शुरू में आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मनी तो पंप इन करना ही पड़ता है जब नए टेक्नोलॉजी आते हैं, एंड धीरे धीरे करके आप देखिए, जब पेटीएम से लेके बाकी चीजें सब आए थे, मैं जब वो शार्क टैंक को देख रहा था तो उसमें यही था कि आपका कि उसमें एक शार्क का एक कमेंट था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोले कि मैं जो है पेटीएम और फोन पे पूरी दुनिया को कैसे क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है उन्होंने सिखाए, और मैं अपना एक स्कैनर ले आया और उससे जो है मैं अपनी पूरी कंपनी उसमें जो है एस्टेब्लिश कर दी। कहीं ना कहीं किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और देखिए जब हम इस बिजनेस का हिस्सा है तो ये हमारे लिए काफी एक नया एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग नए उभरते हुए कलाकार हैं। जैसे मैं एक छोटा सा इसमें एग्जांपल देता हूं, बड़े सारे लोग कहते हैं कि आईपीएल जो है वो एक बिजनेस है, वो सब कुछ है, लेकिन आईपीएल से एक फायदा तो ये हुआ है क्योंकि पहले हम सिर्फ वही 15-20 खिलाड़ियों का नाम जानते थे, लेकिन जब से आईपीएल आया है तो उसमें आप देखिए कि छोटे से छोटे, तो इसमें से अगर आपके पास टैलेंट है आप आइए, शोकेस करिए, एंड आप उन रॉ टैलेंट को भी देखिए कि जब उनकी भी ऑक्शन होता है तो वो भी काफी पैसे में उसमें बिकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों में कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये लोगों के ऊपर है कि वो किसको देखें। जैसे आपने सेंसरशिप की बात की, ये बिल्कुल सही बात है कि ये तो मेरे लिए तो और अच्छा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब मैं सिनेमा हॉल में अगर टेलीविजन को कोई भी फिल्म हम देखने के लिए जाते थे तो उसमें सिर्फ वो रेटिंग होता था U/A, लेकिन कम से कम ओटीटी प्लेटफॉर्म में, जैसे आपने बताया कि जो आईटी रेगुलेशन एक्ट में, तो उन्होंने उसको कैटेगोराइज कर दिए कि इसमें जो कंटेंट है किस एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है, और इसमें जो है किस तरीके की लैंग्वेज है, इसमें वायलेंस है नहीं है, वो पहले से कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड उसके बाद मैं अगर मेरे को लगता है कि मैं एक अवेयर लाइक ऑडियंस हूं, तो मैं फिर उस कंटेंट को देखूं, या अगर मेरे को लगता है कि यार ये मैं फैमिली के साथ नहीं देख सकता, तो मैं उस कंटेंट को अगर कंज्यूम करना चाहता हूं तो मैं अपने स्पेस में जाके अकेले इसको कंज्यूम कर सकता हूं। जब मैं अपने जैसे मेरे को, हालांकि इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे रॉकेट बॉयज जो है वो मैं अपने बेटे को दिखाऊं, लेकिन जब मैंने उसका रेटिंग और ये सारे इंफॉर्मेशन देखा तो फिर मेरे को लगा कि ओके नहीं, उसको अभी जो है मैं पढ़ने देता हूं विक्रम सराभाई और उनके बारे में ये जो सोच है वो जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लास 5 में है, जब वो 9th 10th में आ जाएगा तो ये चीज वो देख लेगा। तो ये इस तरीके के इसमें ये है, और अभी इवॉल्विंग स्टेज में है,
और जो रेवेन्यू मॉडल और इन सब है जो है, और लेकिन शायद सप्तर्षि इसके ऊपर। यस सर, राजीव जी, यो यूट्यूब का भी तो यही वो है मॉडल, रेवेन्यू मॉडल। एब्सोल्युटली वो सर। भी एक प्रीमियर सब्सक्रिप्शन देते हैं, यदि आप उसको ले लेंगे तो वो यूट्यूब ad free होता है। ओरिजिनल सर, यूट्यूब और ओरिजिनल्स। जो फ्री है इनका, उसमें वो बीच बीच में वो इनिशियली जो है वो ऐड लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि, लेकिन वो गोस्वामी जी हमारे यहाँ जयपुर रहे लंबे समय तक, और टाइम्स नाउ के साथ आपकी लंबी पारी रही, और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स से भी जुड़े रहे। सप्तऋषि जी, आप कोई टिप्पणी करें या? हाँ नहीं, सर ने जो भी कहा बिल्कुल सही, मतलब सही है। मतलब ये दोनों ही फॉर्मेट होंगे अभी के लिए। मतलब जैसे नेटफ्लिक्स में नहीं है, नेटफ्लिक्स पे एक ही फॉर्मेट है। इससे मतलब आपने पेमेंट कर दिया, आपने पूरा सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप एड फ्री देखिए पूरा चीजें। मगर जैसे अमेज़न में भी आजकल शोज से पहले ट्रेलर्स आती है, लेकिन वो ट्रेलर्स है, वो तो अपने खुद ही के शोज के ट्रेलर्स आते हैं। लेकिन साथ में आप अगर एमएक्स प्लेयर, सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, वहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट इज फ्री टू व्यू। लेकिन वो आपके शुरू में या बीच में कहीं ना कहीं पे वो एड्स देंगे, एड्स करेंगे वो, लेकिन वही टारगेटेड एड्स वाला हिसाब है। लेकिन आपने जब जैसे उसको पैसा देके उसको सब्सक्राइब कर लिया, देन यू गो एड फ्री। तो दिस इज बेसिकली पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस है वो, आप पैसा देके देखना चाहते हैं, फ्री पे देखना चाहते हैं, या थोड़ा कम पैसा देके देखना चाहते हैं। सो इट्स बेसिकली कम्स लाइक दिस गिविंग द ऑडियंस द पावर टू चूज, नथिंग एल्स। और मुझे ये नहीं लगता कि मतलब इसके चक्कर में मतलब एड रेवेन्यूज वगैरह के लिए कोई अलग मॉडल्स बनने की कोई जरूरत है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी लाइक इट्स बीन ऑन फॉर लॉन्ग टाइम राइट नाउ। चलिए, हमारे कोई और मित्र टिप्पणी करना चाहते हैं? चलिए, मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि लगभग एक 2 और घंटे चीज का। हाँ जी, हाँ जी। मुझे बोलना था, मैं छूट गया इसी एड रेवेन्यू के बारे में। चाइना में एक वहाँ पे कुछ ऐसा ही ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उसका बहुत ही स्कीम बहुत ही अलग है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे Amazon प्राइम का सब्सक्राइबर, उनका मेन फोकस इज टू इंक्रीज देयर सब्सक्राइबर बेस, टू बेसिकली टू रूट देयर कस्टमर्स इनटू द शॉपिंग जोन बेसिकली। अभी फ्लिपकार्ट भी अपना एक एंटरटेनमेंट स्पेस लेके आ रहा है, ठीक है। दे आर स्टार्टिंग विद स्मॉलर कंटेंट एंड दे आर मूविंग इनटू द बिगर कंटेंट लेटर वाइल। लेकिन वही है, देयर मेन अल्टीमेट एम इज टू गो, मतलब पुश दिस पीपल टू शॉपिंग, टू गो शॉपिंग। चाइना में एक ऐसा ऐप है, ऐसा कुछ उनका है चल रहा है, बेसिकली लाइक मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, फिल्म देखते देखते ना वहाँ पे मुझे ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे लाइक वहाँ पे एट्रीब्यूशंस होते हैं, उसको मैं ऑन कर दूंगा तो वो मुझे ऑप्शंस दिखाएंगे कि अगर आपको ये वाला जैकेट खरीदना है तो क्लिक हियर। मतलब कि कोई एक्टर कुछ पहन के बात कर रहा है, अगर वो कहाँ पे खाना खा रहा है, अब ये खाना खाना चाहते हो तो क्लिक हियर। सो दिस इज अनदर मॉडल व्हिच इज ऑलरेडी वर्किंग इन चाइना, ठीक है। अब किसी हीरो को देखते ही कोई कपड़ा पहन के डांस करे तो यार मेरे को ऐसा खरीदना है, फिर मेरे को ऐसा गॉगल्स खरीदना है। So they're giving you that option कि आप कहाँ पे जाके खरीद सकते हैं directly from the app. चलिए साहब, मुझे लगता है चर्चा काफ़ी रोचक रही और ज्ञानवर्धक, और देश के अलग अलग अंचलों से जितने मित्र हमारे साथ जुड़े, उन सब के प्रति हमारा आभार। विशेषकर आज के हमारे चारों एक्सपर्ट, डॉक्टर राजीव कुमार पांडा, सप्तर्षि मजूमदार जी, आप दोनों ने इतना समय दिया। और सप्तर्षि जी तो अपने वर्क प्लेस पे ही थे, वहीं से निकल करके आप अपने उस बिल्डिंग की छत पर बैठ करके उस प्राकृतिक माहौल में अपनी बात कर रहे हैं, तो ये भी एक सुखद अनुभूति है। और इस विषय के प्रति उनका लगाव, जुड़ाव, तो मैं आप दोनों के प्रति विशेष आभारी। और हमारे जो दूसरे 2 एक्सपर्ट हैं, मुकुल श्रीवास्तव जी, क्योंकि उनको इंसिडेंटली किसी और इवेंट में, दैनिक जागरण का इवेंट और था, उसमें ज्वाइन करना था, इसलिए उनको क्विट करना पड़ा बीच में। और श्याम माथुर जी, उनके प्रति बहुत बहुत आभार। इसका तकनीकी पक्ष संभाल रही पृथ्वी सेंगर, उनके प्रति आभार। डॉक्टर उषा सहानी, जिन्होंने इसकी शुरुआती दौर में हमको सहयोग किया, उनके प्रति आभार। और इस सूचना के साथ कि 21 नवंबर को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, उस दिन हम फिर एक आयोजन कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ ढाका से प्रोफेसर गुलाम रहमान हैं, जो बहुत पहले मेरी मुलाकात उनसे कोलंबो में हुई थी, फिर वो जयपुर भी आए थे हमारे डिपार्टमेंट में, और बांग्लादेश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे, और आजकल वहाँ एक समाचार पत्र है उसके संपादक हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया एजुकेटर हैं, वो हमारे साथ होंगे। और चूँकि सप्तर्षि जी INC की प्रोडक्ट हैं, राकेश जी भी वहीं से थे, और मृणाल चटर्जी को शायद आप जानते हो, जो डेंकानेल जो सेंटर है IMC का, वहाँ रीजनल डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। और एक वर्धा की रिसर्च स्कॉलर हैं, नितिशा सिन्हा,
जिन्होंने बांग्लादेश के मीडिया 50 साल पहले जब वो बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ था, उस समय बांग्ला और अन्य भाषाओं के पत्रों ने किस प्रकार से बांग्लादेश के उस आंदोलन को एक तरह से व्यू किया था, किस तरह वो परसेप्शन था मीडिया का, उस पर वो रिसर्च कर रही हैं। कृपाशंकर चौबे जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में उनके शोध निर्देशक हैं, ये सब लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। आप में से जिनके पास भी समय हो उसमें ज्वाइन कीजिएगा 4 बजे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी का पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट में। सप्तर्षि